greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं. Once again we are into the presence of God. एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. And the psalmist says, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. और भजनकार इस प्रकार से कहता है, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ हम प्रभु के घर को चले. Are you happy to be in the presence of God and in the house of God? क्या आप परमेश्वर के घर में आने के लिए और परमेश्वर के भवन में आने के लिए आनंदित है? So let's look towards that God who makes us happy and joyful. आइए हम उस परमेश्वर की ओर निहारें जो परमेश्वर हमें आनंदित और खुश करता है. Let's go into the word of prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, O God, we are at your feet this morning. Lord, we just give you all glory and honor and praises for the wonderful rest you have given to your people, O God, Master. And in this morning, O God, we have woke up, Lord, with a new glory, with the new dimensions, with a new light, O God, with a new power, with a new authority, with a new rights. As a child of God, O Master, we are into your presence, O God, Master. We just give you all the glory and honor and praises, O God, Master. We just, Lord, worship your name in this morning, O God. We lift up your name that you have kept us alive, O God, Master, in this morning, Lord. So many people might have slept forevermore, O God, Master. Lord, they could not have seen this morning, O God, Master. But you have been so much faithful to us, O God, that you have shown us that mercy and that glory in our lives, that our breaths we are taking, Lord, and Lord, we are alive in you, O God, Jesus. We just honor you, Lord, and we just respect you because you are the one who is doing it, O God, giving you all the glory and honor and praises. Father, this morning, O God, when we are going to just worship your name, meditate from your word, O God, praying for the people, O God, Master. Father, I pray, deal everyone, O God, Master. Oh Lord, enable us to worship you, Lord, Master. Oh Lord, not according to our sins, O God, you should deal, O Master. But I pray, O God, let your Shekinah glory of the Holy Spirit shall come upon us. Cleanse us with the blood of Jesus and make us holy, O God, Master, so that we can be the partakers into the worship of God Almighty. For, oh Lord, just to raise up and lift up the name of Jesus Christ in midst of us, O God, giving you all the glory and honor and praises because you alone are worthy to receive this honor and praises, O God. There is none like thee, O God, who can be worshipped in midst of us, O God. Lord, you are the one who is alive and who makes us alive every morning. We just give you all the glory and honor and praises. Father, we just submit each portion of this service into thy mighty hands, O God, Master. Worshipping, O Lord, meditating the word of God, and the prayers shall be in the much control of the Holy Spirit and the full control of the Holy Spirit. The powers of the demons which are working around us, in and through us, Lord, if they want to work, we just nullify and crucify those demons in the name of Jesus Christ. Let the Shekinah glory of the Holy Spirit shall be revealed in and through us, O God, Master. And Father, we pray, O Lord, let your power and your presence shall go with your people, whosoever is watching over here, O God. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory. People who are worshiping with us, O God, online, just I pray in their respective homes, let they shall receive your presence, O God, as they are worshiping you, O God, Master. They shall receive the anointing, O Lord, power of the Holy Spirit, O God, in Jesus' name, O God. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen. Glorify your name. We worship God Almighty this morning when He has kept us alive. हम आज की सुबह में परमेश्वर को महिमा देते हैं, आराधना देते हैं, जब आज की सुबह में प्रभु ने हम सबों को जीवित रखा है. Let's worship the Lord so that His name be glorified in our houses, in our lives, in our families, in this city of Bhopal, Madhya Pradesh, India and the whole world. और तब जब प्रभु ने हमको जीवित रखा है, जब हम उसकी आराधना करेंगे, उस आराधना करने के समय में हम एक चीज देखना चाहते हैं. वो चीज ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, भारत में और समूचे संसार के अंदर में परमेश्वर की महिमा होने पाए. So I would like to call upon my daughter Evangelina and son Jeremiah to just lead us into the time of worship. मैं चाहता हूँ मेरी बेटी Evangelina और मेरा बेटा Jeremiah आकर हम लोगों को यहाँ आराधना में अगुवाई करे. Let's worship the Lord.
परमेश्वर की आराधना करें। चलते हैं
Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. 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 What a powerful God we are serving this कितने morning. सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा आज हम सुबह कर रहे हैं He has provided us everything. और उसने हमें हर एक चीज दी है He has given His only begotten Son और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया so that we can be the children of Almighty God. ताकि हम सामर्थ्य परमेश्वर की संतान कहलाएं Not only that, और केवल इतना ही नहीं on the face of the earth, और इस पृथ्वी के ऊपर में whatever you needed, और जो कुछ भी आप चाहते God has हैं provided वो you. परमेश्वर ने आपको दिया है That God is here. तो वो परमेश्वर यहाँ है। We'll just pray हम प्रार्थना करेंगे for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए I would like to request Brother Pramod to pray for us. और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा एक बार फिर से आपके सामने में आते हैं। आदर गौरव इज्जत पराक्रम महिमा जलाल प्रभु जी सब कुछ आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज की सुबह में आपने हमको प्रभु जी इस लायक समझा है कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। खुदा प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा है। खुदा बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो अनेकों कारण से परमेश्वर आज जीवित नहीं है खुदा, लेकिन परमेश्वर आपकी हमारे जीवनों से एक विशेष योजना है परमेश्वर कि हम तेरे वचन को परमेश्वर तेरे राज्य को प्रभु जी लोगों तक पहुंचाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद बाप हमें इस योग्य बनाने के लिए प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब तेरा वचन प्रभु जी लोगों तक पहुंचे परमेश्वर वो केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर किंतु उसके ऊपर चलने वाले होने पाए। परमेश्वर होने दे कि जब लोग तेरे इस वीडियो को देखते हैं तेरे वचनों को सुनते हैं खुदा आपका वचन उनके जीवनों में परमेश्वर क्रियान्वित होने पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं एक बात के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिवादन करते हैं। It's a real joy one more time to be in the presence of God sharing His powerful word. और ये सच्चे आनंद की बात है कि एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को आप लोगों के साथ में बांटना। God is good और परमेश्वर भला है all the time. हर समय And all the हर time, समय God is good. परमेश्वर भला है। All God is good परमेश्वर भला है all the time, हर समय and all the time, और हर समय God is good. परमेश्वर भला है। So let's look into the word of God this morning. और आज के सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। Last Sunday I was speaking to और you पिछले रविवार को मैं आपसे बात कर रहा था that God is our Father. और कि परमेश्वर हमारा पिता है By believing on Jesus और Christ यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा से and accepting Jesus as His personal Savior, our personal और Savior, हमारा व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा से that's how we become the child or children of और इस God. प्रकार से परमेश्वर के बच्चे या उसके संतान होते हैं। So when we are the children of जब हम God, परमेश्वर की संतान हैं whatever is belonging to our Heavenly और Father, जो कुछ भी हमारे स्वर्गीय पिता का है that belongs to us. वो हमारा है। So whatever you think, और जो कुछ भी आप सोचते हैं why we are dragging into our lives, और क्यों हम हमारे जीवनों में रेंग रहे हैं but because God has called us to be, the people of authority, the people of power, and the people of right as a child of God. लेकिन परमेश्वर ने हमको बुलाया है परमेश्वर की वो संतान जिसके पास में अधिकार है सामर्थ्य है एवं उसके पास वो सारी चीजें परमेश्वर की संतान होने के लिए God has chosen us. और परमेश्वर ने हमको चुना है God has called us और परमेश्वर ने हमको बुलाया है so that we can be partakers into the heavenly kingdom with that power and authority and right of God Almighty. ताकि हम उस अधिकार एवं सामर्थ्य के द्वारा से उसके साथ में स्वर्गीय वो जो स्वर्गीय स्थान है परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सहभागी हों। What an awesome God we और serve. कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम So करते today हैं। I would like to just talk to you about the rights of a child of God. और आज के दिन में हम आपसे बात करेंगे परमेश्वर की संतान के अधिकारों के बारे में। Last week I spoke to और you. पिछले रविवार को मैंने आपको You बताया are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं। Do not fear for anything आप किसी भी चीज से डरे नहीं because God is in control of your life. क्योंकि आपके जीवन के ऊपर में परमेश्वर का नियंत्रण है Because you are a child of क्योंकि आप God. परमेश्वर की संतान हैं। That's why everything He is, keeping into His own hand. और इसी कारण से उसने सारी चीजों को अपने हाथों में रखा। Whatever belongs to you, जो कुछ भी आपका है whether good or वो bad, अच्छा हो या भला हो God is in control of those things. परमेश्वर का उन चीजों के ऊपर में नियंत्रण है। That's why you should not be worried और इसी about. कारण से आपको चिंता करने
करने की आवश्यकता नहीं All है। the areas of your life, और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र God is taking care. और परमेश्वर उसकी देखभाल कर रहा What you है। need to do, और आपको क्या करने की आवश्यकता every है? day, प्रत्येक दिन when you wake up in the जब आप सुबह morning, के वक्त में उठते हैं, surrender everything into the hands of तो God. परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज को आप समर्पित कर When He दीजिए। handles everything, और जब वो सारी चीजों को संभालता है, oh, there will not be anything a problematic और वहाँ पर part. कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती If there है। are और problems, यदि वहाँ पर कोई समस्या है, He will solve it वो out. उसको सुलझाता है। You are a child of आप God. परमेश्वर की संतान That's हैं। why He is keenly interested in your और life. इसीलिए वो आपके जीवन के अंदर में अत्यधिक रुचि रखता है। So, my dear beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, just go towards what are the rights of a child of और हम God. आगे जाएंगे कि परमेश्वर की संतान के अधिकार क्या है। First thing, वो पहली बात, the Father God has given us the intimacy to be called the child of और God. परमेश्वर ने हमें वो घनिष्ठता दी है And- कि उसकी संतान कहलाएं। First thing you should और know, पहली चीज जो आपको जानना है, because God gave His only begotten क्योंकि Son, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया so that He can have that intimate relationship with you. ताकि उसकी घनिष्ठ वो संबंध जो है वो आपके साथ में हो। And that's how you have got that, the right of an intimacy. और इसी कारण से आपके पास में अधिकार है घनिष्ठता का। Open with me the book of Romans chapter 8 और मेरे साथ में खोलेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय and verse 15th second part. और उसका 15वीं आयत, उसका दूसरा भाग, 15वीं आयत का दूसरा भाग हम I देखेंगे just read in English. और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। You received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. तो यहाँ पर हम जो दूसरा भाग है उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जिससे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Maybe a sentence before. और उससे पे हम पूरी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी फिर भयभीत हो, परंतु लय पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। God has adopted you और परमेश्वर ने आपको जो है गोद लिया है, because we were into the sins. क्योंकि हम पाप में थे We were not called the children of और God. हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाते But थे। adoption by giving His own Son Jesus Christ has taken place into our lives. लेकिन उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे करके आपको जो है गोद ले लिया है। लेपालकपन से आपको ले लिया है. He has received you as an adopted और उसने child. ले पालकपन से आपको ले लिया है अपनी संतान के रूप में। What happens on the face of the और earth? संसार में क्या हुआ? If some, the couple who don't have the issues in their life, और यदि किसी दंपति के जीवन में कोई समस्या नहीं होती, बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे नहीं होते, so what they do? तो वो क्या करते They हैं? adopt a child. वो जो है बच्चे को गोद लेते Then हैं। court will just give a decree. उसके बाद में न्यायालय जो है वो घोषणा करता है And that it is, decreed like that, that such and such child, till today, he was an orphan, but today, so and so, Mrs. and Mr. has taken that child as an adopted उसके बाद child. में न्यायालय क्या करता है? न्यायालय एक घोषणा पत्र जारी करता है कि इस दिनांक तक ये बच्चा जो था वो अनाथ था, किंतु अब ये जो दंपत्ति है इन्होंने इसको गोद लिया। And that's how the surname is given of that father and mother, even they were not having the children. और इसी कारण से वो जो दंपत्ति का जो उपनाम था वो संतान को दिया जाता है, यद्यपि वो संतान उनकी नहीं है। But look at our father. लेकिन हमारे पिता को He was देखिए, having his only begotten और son. उसके पास में इकलौता पुत्र था, But just to receive and adopt you, he has given his only begotten लेकिन son. हमें गोद लेने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। And then he, after adopting और you, उसके बाद में उसने आपको गोद लिया, he has given you the right उसके बाद में उसने अधिकार दिया to call him Abba and उसे Father. हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार। Abba is an Aramic और जो word. अब्बा है वो अरबी भाषा का शब्द है, And in today's और world, आज के संसार में we can see the meaning of Abba like, daddy when we call to our और father. अब्बा को हम आज के संदर्भ में जो है पिता कहकर संबोधित करते हैं। Daddy. पिता, He's our daddy. वो हमारा पिता Can है। you call him? क्या आप उसको बोल सकते Can you हैं? write in the inbox? क्या आप लिख सकते हैं वो इनबॉक्स में? Jehovah God is my daddy. यहोवा परमेश्वर मेरा पिता है। By proclaiming that, और ऐसा घोषणा करने के द्वारा you become the child of God and you become the family member of God's family. ऐसा लिखने के द्वारा से आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, और परमेश्वर के जो है घराने में कहलाएंगे। Write it down there. वहां पर लिखिए, Oh, write it down. I am a child of और वहां पर God. लिखिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, Because Jehovah has given me the
the right to call him daddy. क्योंकि यहोवा ने मुझे ये अधिकार दिया है उसे पिता कहने के So लिए। God has given you the right to be having the intimacy with God, to call him Abba and Father. तो परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है उस घनिष्ठता का, ताकि आप उस अधिकार के द्वारा से उसे हे अब्बा, हे पिता कह सकें। When my father, physical father, was on the face of the और earth, जो मेरे शारीरिक पिता वो इस पृथ्वी के ऊपर में थे, oh, I used to love him very much. और मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था। Whenever and wherever he used to go, और कहीं भी वो कहीं भी जाते थे, oh, I used to go with him. और मैं उनके साथ जाता था। He was having the cycle and he was taking me on the cycle. और उनके पास में साइकिल थी, वो मुझे अपने साइकिल पर लेकर के जाते थे। And when he is traveling by train, I am with him. तो जब वो रेलगाड़ी से सफर करते थे तो मैं उनके साथ में रहता Even था। on his duty, I used to be with him. और उनकी नौकरी के समय में भी मैं उनके साथ में था। That much love I was having for my और इस father. प्रकार का प्रेम मेरा मेरे पिता के साथ में था। When I lost my और जब father, मैंने अपने पिता को खोया, I thought my world is और gone. मैं सोचने लगा कि मेरा संसार खत्म हो चुका है, Oh, I was backslidden. और मैं पीछे चला गया। But then God called me back. लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर से He बुलाया said to और me, उसने मुझसे कहा, my son, I am मेरे there. बेटे मैं वहाँ हूँ, I will take care of like your daddy and more than that. और मैं तेरे पिता के समान और उससे बढ़कर तेरी देखभाल करूंगा। Today I don't have a physical और father, आज मेरे पास शारीरिक पिता नहीं है, but I have a spiritual father. His name is Jehovah God. लेकिन मेरे पास में आत्मिक पिता है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है, And his name is I am that I उसका am. नाम मैं जो हूँ सो हूँ है। So, you know, when just the way I used to love my physical और जिस father, प्रकार से मैं अपने शारीरिक पिता से प्रेम करता था, I am loving my heavenly मैं father. अपने स्वर्गीय पिता को प्रेम करता हूँ। When I am into और trouble, जब मैं परेशानी में होता हूँ, I say, मैं Daddy, कहता हूँ पिता, I am in मैं trouble. परेशानी में Can you हूँ, make a way for me? क्या आप मेरे लिए मार्ग को खोलेंगे? God comes और परमेश्वर आता है and he gives me the और वो way मुझे मार्ग देता because है, he is my क्योंकि father. वो मेरा पिता है I am his adopted और child मैं उसका लय पालकपन के द्वारा लिया हुआ बेटा हूँ। by the blood of Jesus यीशु Christ, मसीह के द्वारा से, by the sacrifice of Jesus यीशु Christ. मसीह के उस बलिदान के द्वारा से I believed on Jesus. मैंने यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, That is called me the righteousness. और वो मेरे लिए धार्मिकता है, And I'm becoming the child of God Almighty. और मैं परमेश्वर का बेटा बन जाता हूँ, जो सामर्थी परमेश्वर है। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, you may be an orphan तो today. हो सकता है कि आज आप अनाथ हो, You may be the people who have been rejected by your parents. और हो सकता है कि आप ऐसी संतान हो जो अपने माता पिता के द्वारा से जो तिरस्कृत की गई हो, Oh, maybe saying, you know, this boy is not of good use for us. और हो सकता है कि ऐसा कहते हो कि ये जो बेटा ये हमारे लिए किसी काम का नहीं This है, daughter is of no good use for me. और ये बेटी मेरे किसी काम की नहीं But है। listen me carefully. ध्यान से सुने, Your father loves आपका you. पिता आपसे प्यार करता He's है, saying to वो आपसे you, कह रहा है, my son, मेरे बेटे, I love उसे you. प्रेम करता You are है of good use for me. और तू मेरे काम का है। Oh, daughter. बेटी, Oh, you are good. Oh, you are a good use for और तू me. मेरे बहुत काम की है। Come to मेरे me. पास में आ। Call me Abba मुझे Father. हे अब्बा हे पिता क्या है? Call me मुझे Daddy. पिता के, I am your daddy. मैं तेरा पिता हूँ, I will take care of your मैं life. तेरे जीवन की देखभाल करूंगा। Can you write down? क्या आप लिख सकते हैं? Daddy, I come to पिता you. मैं आपके पास में आता Daddy, I हूँ, come to you. पिता मैं आपके पास में आता Daddy, I हूँ, come to पिता मैं आपके you. पास में I आता lost हूँ, everything. और मैंने सारी चीजों को खो दिया, But I know there is a daddy over me, with me. लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास में मेरा पिता है, His name is I am that I am उसका God. नाम है मैं जो हूँ सो परमेश्वर हूँ। Who has given that intimacy to call him Abba and Father? कौन हमें ये घनिष्ठता देता है कि उसे हे अब्बा हे पिता के संबोधित करें, He is I am that I am और God. उसका नाम मैं जो हूँ परमेश्वर है। Father, I surrender my और पिता life. मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ And I और मैं declare घोषणा करता हूँ that you are my कि Father. आप मेरे पिता हैं, You are my आप मेरे Father. पिता हैं, You are my Father, आप O मेरे पिता हैं, God. खुदा। Oh Abba. हे अब्बा, Oh हे Daddy. पिता, I come to thee. मैं आपके पास में आता So हूँ। first thing, तो पहली बात, God gives you the right of intimacy to call him Abba and तो Father. परमेश्वर आपको अधिकार देता है उसके साथ में उसकी घनिष्ठता में आने का। So first thing you need to call your Jehovah God your daddy. तो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है, आपको यहोवा परमेश्वर को अपना पिता कहना है, Only through Jesus Christ it is तो possible. केवल यीशु मसीह के द्वारा से ये संभव है। Without calling the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम के बिना, you cannot call Jehovah God as your father. और यीशु मसीह के नाम के बिना आप यहोवा परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह So सकते। first thing, God gives you the intimacy to be His child and to call him Abba and Father. तो पहली चीज परमेश्वर आपको घनिष्ठता देता है उसकी संतान कहलाने के लिए। Second thing, दूसरी बात, God gives you the security and the protection. वो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। Open with me the book of Genesis, और मेरे साथ में खोले उत्पत्ति की पुस्तक, chapter 15 उसका 15वां अध्याय and verse 1. और उसकी पहली आयत। हम Genesis
15 उत्पत्ति 15 and verse 1. और पहली आयत। Sometime later, the Lord spoke to Abram in a vision and said to him, "Do not be afraid, Abram, for I will protect you and your reward will be great." उत्पत्ति 15 का 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If you are here on the Facebook, और यदि आप इस फेसबुक के ऊपर में हैं, Bible says, बाइबल कहती है, "Fear not, Abram." और डर मत है अब्राम। So just write, fear not and your name. और वहां पर ऐसा लिखिए, मत डर, और आपका नाम लिखिए। Fear not, Deepak. और ऐसा लिखिए कि डर मत दीपक, Fear not, Pramod. और मत डर प्रमोद, Fear not, Durgesh. और मत डर दुर्गेश, Fear not, Evangelina. और मत डर एवेंजलिना, Fear not, और Jeremiah. मत डर जरमाया। Whosoever it may और be, जो कोई भी हो, you write it down. आप ऐसा लिखिए। You should not आपको fear. डरना नहीं है। Why? क्यों? The world is undergoing a pandemic और now. जो सारा संसार है वो महामारी के अंदर में है, And it is bringing so much of bad effects on the people of the और ये world. संसार के लोगों के ऊपर में बहुत बुरे प्रभाव डाल रहा है। And people are actually in और trouble. लोग जो है वो परेशानी में है, Because of that trouble, क्योंकि उस परेशानी के द्वारा से। they are fearing. But you are a child of लेकिन आप God. परमेश्वर की संतान है, You should not fear. आपको डरना नहीं है। Why? क्यों? When God is near, और जब परमेश्वर पास में है, never fear. कभी मत डरिए। When God is near, जब परमेश्वर पास है, never मत fear. डरिए। Oh, God is near to वो you. परमेश्वर आपके पास में And है। He's saying, वो कह रहा है, write into the inbox. और इनबॉक्स में लिखिए, Oh, fear not, Deepak. और मत डर दीपक, As for me, मेरे लिए, for you write your name. आपके लिए आप अपना नाम लिख सकते Because हैं, God is telling क्योंकि you, परमेश्वर आपको बता रहा I है, am your shield. मैं तेरी ढाल हूँ, I am your shield. मैं तेरी ढाल हूँ, I am your shield. मैं तेरी ढाल हूँ। Your God is protecting you from every nook and corner of your life. और आपका परमेश्वर हर एक दिशा से आपकी रक्षा करता है। Oh, the enemy, anyway, in any way they are coming, God is coming into that side and He's saving your lives. और वो किसी भी तरफ से वो जो परेशानी आए, परमेश्वर वहां पर आपकी रक्षा करता है उस क्षेत्र में। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If your enemy is coming from the front, तो यदि आपका दुश्मन सामने से आए, God will stand as a shield तो between you and your परमेश्वर enemy. आपके और आपके दुश्मन के बीच में एक ढाल बन के खड़ा रहेगा। If the enemy is coming from the back, और यदि आपका दुश्मन पीछे से आए, oh, God will stand behind तो you. परमेश्वर आपके पीछे खड़ा रहेगा। If it is coming from the right, और यदि आपका दुश्मन दाहिनी ओर से आएगा, oh, it will, God will just come on the right side. तो परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा होगा। And if it is coming from the left, और यदि आपका दुश्मन जो बाईं ओर से आएगा, God will come on the left side. तो परमेश्वर बाईं ओर खड़ा होगा। How can I know? मैं कैसे जान सकता हूँ? Remember, याद रखिए, in the book of Exodus chapter 14th, और निर्गमन की पुस्तक उसकी 14वीं आयत में, overnight, और पूरी रात, the Israel was having the Red Sea before them. और इजराइलियों के सामने में लाल समंदर था, And behind was Pharaoh and the army of Egypt. और पीछे जो है वो मिस्र की सेना एवं फिरौन था। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, overnight, पूरी रात God was standing between the Israelites and between the army of the Egyptians and Pharaoh. और पूरी रात परमेश्वर जो है वो इजराइलियों और जो फिरौन की सेना है उनके बीच में खड़ा रहा। Oh, God never allowed that this Egyptians should take over the Israelites. और परमेश्वर ने कभी भी अनुमति नहीं दी कि ये जो मिस्री सेना है वो इजराइलियों को पकड़ ले। Why? क्यों? Because he is the shield of Israel. क्योंकि वो इजराइल की ढाल है। You are a spiritual Israel. आप आत्मिक इजराइल हैं। That's why God is saying और उसी you, कारण से परमेश्वर आपसे कह रहा है, my son, my मेरे daughter, बेटे मेरी बेटी, don't fear. मत डर, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। I am your shield. मैं तेरी ढाल हूँ। I will protect you मैं तुझे रक्षा from करूंगा every nook and हर corner. एक दिशा से। God has protected तो you. परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। World may show you, the
the network of this coronavirus is coming in the form of community infection. It may be in the form of city infection, but God is in protection of your lives, and your life will not be destroyed by the power of coronavirus. और हो सकता है कि आपसे लोग इस प्रकार से कहे कि जो कोरोना वायरस है वो एक सामाजिक संक्रमण के रूप में आपके जीवन में आकर के आपके जीवन का विनाश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि ये कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। What we need to do? हमें क्या करने की We आवश्यकता have है? to be in the presence of हमें God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की Dear आवश्यकता children है। of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, don't sin. और पाप मत कीजिए Don't do the transgressions. और उल्लंघन मत कीजिए। Though if you do यदि so, आप ऐसा करें oh, God will not be with तो you. परमेश्वर आपके साथ में नहीं होगा। But if you are living a holy और यदि life, आप पवित्र जीवन that's जीते why Bible says और in इसी कारण- First Peter 1 and 15. और इसी कारण से पहला पत्रस 1:15 बाइबल कहती है, Oh, as your God is holy, you should be और जैसे holy. तेरा परमेश्वर पवित्र है तू भी पवित्र हो। Oh, you may be unholy और person, हो सकता है कि आप अपवित्र व्यक्ति but when you ask the help of God, लेकिन जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं Lord, make me holy. कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना, You cannot live a holy life by yourself. आप स्वयं के द्वारा से एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। Holy Spirit will enable you to be into the holiness and और righteousness. पवित्र आत्मा वो योग्यता देता है कि एक धार्मिक एवं पवित्र जीवन आप जिएं। Give the control of your spiritual life, mental life and physical life into the hands of Holy Spirit. अपने शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक जीवन का नियंत्रण आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए In the hands of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के हाथ में दीजिए। Holy Spirit will lead you on the way of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा यीशु मसीह Then you के will मार्ग में। not sin, उसके बाद में आप पाप नहीं but you करेंगे, will live a holy life. लेकिन आप पवित्र जीवन When जिएंगे। you will live a holy और जब आप life, पवित्र जीवन जिएंगे, God shall be the protection. तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा होगा। Look at the Abraham. और अब्राहम को देखिए, Oh, he by this time he has not become the Abraham, और इस समय तक जो है अब्राहम नहीं हुआ, but he obeyed the voice of लेकिन God. उसने परमेश्वर की आवाज के पीछे चला And that has been, counted as for him as a righteousness. और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। You are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं। Believe what the Bible is saying. और बाइबल जो कह रही है उस पर में विश्वास कीजिए, Apart from Bible, you cannot do anything. और बाइबल के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। My dear children of और God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, I'm talking to you this मैं morning. आज की सुबह आपसे बात कर रहा Do हूँ। not fear the coronavirus. और कोरोना वायरस से मत डरिए, Do not fear the effects of और coronavirus. इस कोरोना वायरस के जो प्रभाव है उससे भी मत डरिए, Fear your God. अपने परमेश्वर से डरिए, He will protect your lives. वो आपके जीवन को सुरक्षा So the देगा। first right is तो पहला अधिकार, intimacy to call your God as Abba and Father. और परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता जिसके कारण से आप हे अब्बा, हे पिता कहकर संबोधित करते हैं। Second thing, दूसरी बात, as a right, child of God, you are protected and provided a shield by Himself, God Himself. और परमेश्वर की संतान होने के द्वारा से परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है एक ढाल के रूप में, He Himself becomes a shield around और you, वो स्वयं आपके चारों ओर एक ढाल बन जाता है, covers you from every nook and और corner. हर एक दिशा से, हर एक क्षेत्र से वो आपकी रक्षा करता है। Demons may और come, दुष्ट आत्मा आ सकती they है, may attack हो you. सकता है कि वो आप पर आक्रमण करे, Oh, but God will protect लेकिन you. परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, He is a protecting और God. वो सुरक्षा देने वाला He is a परमेश्वर, protecting और God. सुरक्षा देने वाला Third परमेश्वर। thing, तीसरी बात, God has given you the authority. और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Open the book of Romans chapter 8. रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय And 15th verse, 8th part, A part. रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय एवं उसका पहला भाग हम देखेंगे। 8वां अध्याय। 8वां अध्याय उसके 15वीं आयत का पहला भाग हम देखेंगे। So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? God has not given you the spirit of a slavery. और परमेश्वर ने आपको दासत्व की आत्मा नहीं दी है, God has not called you to be the slaves. और परमेश्वर ने आपको जो दास होने के लिए नहीं बुलाया है। Slave do not have his own independency. और जो दास होता है उसके पास में
खुद की स्वतंत्रता नहीं होती। But the son of the family carries the authority of the family. लेकिन परिवार का जो बेटा होता है उसके पास में अधिकार होता है। You are not a slave in the family of God. और आप परमेश्वर के परिवार में एक दास नहीं हैं, But you are a son or a daughter into the house of God. लेकिन आप परमेश्वर के भवन के बेटे एवं बेटी हैं। The slave is not given the surname to the slave. Slave do not get the right to have the surname of the father. और जो दास होता है उसके पास में अधिकार नहीं होता है कि वो पिता का उपनाम ले सके। But the son and the daughter is having the authority to just have the surname of the father. लेकिन जो बेटा एवं बेटी होती है उसके पास में अधिकार होता है कि परिवार के पिता का उपनाम ग्रहण कर सके। The respect of the family is given to the son and the daughter. और जो आदर होता है परिवार का वो बेटे या बेटी को दिया जाता है। The love of the family is given to the son and the daughter. और जो प्रेम होता है परिवार का वो बेटे और बेटी को दिया जाता है। And the son has been given or the daughter has been given the authority of the family. और जो परिवार का अधिकार होता है वो बेटे या बेटी को दिया जाता है। Everybody who calls on the name of Jesus Christ और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है and goes to the heavenly और वो Father, स्वर्गीय पिता के पास जाता है, that God has given him the authority. वो स्वर्गीय पिता जो है उसको अधिकार देता है। Open with me the book of Luke, मेरे साथ में खोलिए लूका रचित सुसमाचार, chapter 10 and verse 19. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। I'll read for you. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 10:19 of Luke. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। Jesus is saying here, और यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. लूका 10:19 देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Father has given the right to be called the sons and daughters. और जो परमेश्वर है उसने हमको अधिकार दिया है बेटा या बेटी होने के लिए। And becoming sons and daughters in the family of God, और परमेश्वर के परिवार में बेटा या बेटी होने के कारण से God has given the authority. और परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया। You are a child of आप God. परमेश्वर की संतान है। You carries the authority of the heavenly आप Father. स्वर्गीय पिता का अधिकार अपने साथ में लेकर के चलते हैं। And same way, His Son is also authorizing you to have His own power. और समान रीति से उसका जो बेटा है वो भी आपको अधिकार दे रहा है। What a wonderful Father and the Son we see in the heavenly kingdom. और स्वर्गीय राज्य में कितने अद्भुत जो है पिता एवं पुत्र को देखते हैं। Jehovah God is a Father. और यहोवा परमेश्वर पिता, Jesus Christ is the Son. यीशु मसीह बेटा। God has given us to be called as the sons and daughters and to have the authority of God. और स्वर्गीय पिता जो है हमको अधिकार देता है उसका बेटा या बेटी होने के लिए वो सारे अधिकारों को देता है। Same way, वो समान रीति the से authority which Jesus is having from His Father. और जो अधिकार यीशु मसीह को उस पिता से मिले थे, Oh, the same authority and power He has given to you and to me. और वही समान अधिकार और सामर्थ्य वो आपको और मुझे देता है। He's saying very powerfully और यहाँ here. पर बहुत सामर्थ्यपूर्ण तरीके से वो कहता है, Look, I have given you authority over all the power of the enemy. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? This morning, are you hearing the voice of आज God? की सुबह में क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? You carry the authority which was upon the Jesus Christ. आपके पास में वो अधिकार है जो अधिकार यीशु मसीह के पास में था। You should not be worried in the time of pandemic. आपको महामारी के समय में जो है डरने की आवश्यकता नहीं But है, use the power of that authority. लेकिन उस अधिकार की सामर्थ का इस्तेमाल कीजिए। You need to learn that. आपको सीखना है। If you will not do यदि आप so, ऐसा ना करें you will lose your तो blessings. आप अपनी आशीषों को And you will come into the curses. और आप श्रापों में आ जाएंगे। Jesus has given you the authority और यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है against all the power of the enemy. और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर में। Satan may be working in the whole और हो world, सकता है कि शैतान पूरे संसार में कार्यरत हो, but you know you have लेकिन authority आपके पास में अधिकार to है stop that Satan, और उस शैतान को रोकने के to लिए। stop the agents. Those are the demons. You know they are working around you in your territories. और आपकी सीमा के अंतर्गत जो दुष्टात्माएं कार्य करती है उनको रोकने के लिए भी अधिकार है, Because Jesus has given you the क्योंकि authority यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है over the power of your enemy. और आपके शत्रु
शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर John में। 8:32 says, और यूहन्ना 8:32 कहता है, you shall know the truth, आप सत्य को जानोगे and truth shall set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 8:36 says, 8:36 कहता है, oh, Jesus is saying और there, वहाँ यीशु मसीह कह रहा है, oh, to whom the Son has redeemed, they are free. और पुत्र जिसको आजाद करता है वो आजाद है। Oh, then you are a delivered child of और आप God. परमेश्वर के छुड़ाए हुए संतान हैं। You have been given the authority to deliver yourselves from the powers of the enemy. और आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने शत्रु से अपने आप को छुड़ा सके। You are not an ordinary और आप person. साधारण व्यक्ति नहीं हैं। You have been given the supernatural authority of Jesus Christ. और आपके पास में यीशु मसीह की वो अलौकिक अधिकार है। Receive that authority in the name of Jesus और Christ. यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को आप ग्रहण करें। That authority is your part and parcel of your life. और वो जो अधिकार है वो आपके जीवन का एक भाग है। Satan may say you cannot do it. और शैतान हो सकता है ऐसा कहे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। Tell him, उससे कहें, devil, you are a और liar. दुष्ट आत्मा तू झूठा है। Oh, demons, you are liars. दुष्ट आत्मा तुम झूठी हो। But my Jesus is alive. लेकिन मेरा यीशु मसीह जीवित है। Who is a true और वो God. सच्चा परमेश्वर And है। he gave me that और वो power. मुझे सामर्थ्य He देता gave me है। that authority वो मुझे अधिकार देता है against the power of the enemy. शत्रुओं की सारी सामर्थ के Are you ऊपर। terrified by the power of your enemy? Speak it out that I carry the authority of Jesus Christ. और यदि आप अपने शत्रु की उस सामर्थ से डर गए हैं तो आप खड़े हो जाइए और ऐसा कहिए कि मेरे पास में यीशु मसीह की वो सामर्थ है। Declare it और ऐसी घोषणा by कीजिए writing into your inbox. और अपने इनबॉक्स में ऐसा लिखिए, I carry the authority of Jesus Christ. मेरे पास में यीशु मसीह की वो सामर्थ है। I carry the authority of Jesus मेरे Christ. पास में यीशु मसीह का अधिकार है। I carry the authority of Jesus मेरे Christ. पास में यीशु मसीह का अधिकार है। I will trample the power of the enemy below my feet. और मैं अपने पैरों के नीचे उस शत्रु की पूरी सामर्थ को रोंद दूंगा। Amen. Hallelujah. Write it down. ऐसा लिखिए, I will trample the power of the enemy below my feet in Jesus' name. और ऐसा लिखिए कि मैं यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा से शैतान की सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रोंद दूंगा। Because Jesus has given me that क्योंकि authority यीशु मसीह ने मुझे अधिकार against the दिया power of the enemy. और शत्रु की सामर्थ के ऊपर। All the spiritual scorpions. और सारे जो आत्मिक बिच्छू हैं Oh, all the spiritual snakes. और सारे आत्मिक सांप जो हैं, Listen in Jesus' name. सुनो यीशु मसीह के नाम People से। who are listening this voice, और वे लोग जो इस आवाज को सुन रहे हैं, they carry the authority of Jesus Christ. वे यीशु मसीह की सामर्थ को साथ में लेकर के They चलते carry हैं the authority of God the Jehovah. और वो यहोवा परमेश्वर के अधिकार को साथ में In लेकर के Jesus' चलते हैं। name, यीशु के नाम from से। this moment onwards, और इसी समय से they shall trample the power of the enemy which is found in the demons and in satanic kingdom in the name of Jesus Christ. I decree and declare to come upon these people in Jesus' name. और ये सारे लोग जो सुन रहे हैं कि ऐसा होगा कि आज के बाद से वो शत्रु की सारी सामर्थ को जो शैतान एवं दुष्टात्माओं के रूप में इनके जीवन में आती है परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ से अपने पैरों के नीचे रोन देंगे। Write it down. और ऐसा लिखिए, Write it down. ऐसा लिखिए, I shall trample the power of the enemy below my feet. और ऐसा लिखिए कि मैं शैतान की सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रो दूंगा। Jesus, in Jesus' name, यीशु के नाम से। I shall trample the power of the enemy below my feet. और यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान की सारी सामर्थ को अपने पैरों के नीचे रोन दूंगा। I feel in my spirit. मैं आत्मा में महसूस There कर are रहा so हूँ। many people who are watching और me. बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं Mentally, you have been harassed by Satan and the demons. और मानसिक रूप से आप शैतान और दुष्टात्माओं के द्वारा से प्रताड़ित किए गए हैं Because you could not understand what the power and authority you are carrying into your lives. क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि आपके जीवन के अंदर में किस प्रकार का सामर्थ एवं अधिकार आपके पास है That's why you are in और trouble. इसी कारण से आप परेशानी में हैं। Know this fact. और इस सत्य को जान Know लीजिए, this truth. इस सत्य को जान Truth लीजिए shall set you क्योंकि free. सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Don't give demons your head of the workshop. और अपने मस्तिष्क को शैतान की कार्यशाला के रूप में मत दीजिए, But enable this mind to be in the control of the Holy Spirit. लेकिन इस मस्तिष्क को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपिए Then you can say, ताकि आप कह सकें, demons, और दुष्ट आत्माओं you are below my feet. तुम मेरे पैरों के नीचे हो, I am a child of मैं God. परमेश्वर की संतान हूँ, I have a right मेरे पास में अधिकार है to just crush you
below my feet in Jesus' name. मेरे पास में अधिकार है कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दूं। So many people, बहुत सारे लोग they give demons their heads. और बहुत सारे लोग अपने जो दिमाग को जो है वो दुष्टात्मा को दे देते हैं। That's why demons are crushing their heads. और इसी कारण से जो दुष्टात्मा है उनके सिर को कुचल देती And they है are, crushing every area of their lives. और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र को वो नष्ट कर देती God है। has called you to be the winners, और परमेश्वर ने आपको विजयी होने के लिए बुलाया है not a defeaters. और जो है हारे हुए व्यक्ति होने के लिए नहीं। God wants that you should be a successful person in your और life. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने। That's why I'm saying और इस you, कारण से मैं आपसे कह रहा God हूँ has called you with a purpose. और परमेश्वर ने एक योजना के द्वारा से आपको बुलाया है। That's why He has given you that authority which was upon Jesus Christ. Same authority has been given to और you. इसी कारण से उसने आपको वो अधिकार दिया है कि जो अधिकार यीशु मसीह के पास था। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा I give my authority to you. मैं अपना अधिकार तुम्हें दिए जाता हूँ। God, Jesus is saying to you this morning, और आज की सुबह में यीशु मसीह आपसे कह रहा है this authority I'm giving to और ये you. अधिकार जो मैं आपको दे रहा हूँ Are you with me? क्या आप मेरे साथ I am unable to go out of the authority of और God. मैं जो है परमेश्वर के अधिकार से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ Because Spirit is leading me that I should teach you more and more about, and I should preach you more and more about the authority which God has given to क्योंकि you. आत्मा मुझे उत्साहित कर रही है कि मैं परमेश्वर के द्वारा आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में और अधिक प्रकाश डालूं। What a wonderful God we are तो serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Open with me the book of Hebrew वो मेरे साथ में बोलिए इब्रानियों की पत्री and chapter 11 और उसका 11वां अध्याय and 3rd verse. 11:3 of Hebrew. 11 अध्याय उसका 3री आयत। By faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we now see did not come from anything that can be seen. और इब्रानियों 11 का 3 विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। You should know who is your God. और आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कौन If है। you go to the first chapter of Genesis, और यदि आप उत्पत्ति पहले अध्याय में जाएं oh, God has created everything from zero. और परमेश्वर ने शून्य से हर एक चीज को बनाया। Rather, in other और words, दूसरे शब्दों में I can say like मैं इस that, प्रकार से कह सकता हूँ the universe was not physically present. वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो भौतिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं था It was only zero. और वो शून्य था। It was only zero. वो शून्य था Oh, it was only zero. और ये केवल शून्य था। Tell your God, अपने परमेश्वर से कहिए today I am zero. आज मैं शून्य हूँ, Today I am zero. आज मैं शून्य हूँ, But I am going to speak the world to be created by your word in the name of Jesus Christ. लेकिन आज मैं कहता हूँ उस संसार को बनने के लिए आपके वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। Who is your आपका God? परमेश्वर कौन है? When there was nothing, जब वहाँ कुछ भी नहीं था God started calling the things by His word. परमेश्वर ने उन चीजों को नाम ले लेकर बुलाया। What a powerful authority God carries in His own being. और परमेश्वर स्वयं के अंदर कितने अद्भुत अधिकार को लेकर के चलता है Things which are not in existence. और वे चीजें जो उपस्थित ही नहीं है God is calling them by name. और परमेश्वर उन चीजों को जो है ही नहीं उनको नाम लेकर के बुलाता है। You need to learn this morning. आज की सुबह आपको सीखने की आवश्यकता Because है of the pandemic, क्योंकि इस महामारी के कारण से you might have lost your jobs. आपने हो सकता है कि अपनी नौकरी को खो दिया हो Maybe you have lost your businesses. और आपने अपने व्यवसायों को खो दिया हो Oh, money has become a great difficulty for you to earn. और आज के समय में धन जो है वो आपके लिए बड़ी समस्या हो सकता है। Sickness may be हो there. सकता है कि बीमारी हो The infection of the pandemic may be around your houses. और हो सकता है कि आपके घरों के आसपास में महामारी का संक्रमण हो। You might have lost everything. हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया Because of the pandemic, इस महामारी के कारण everything might have become zero. सारी चीजें हो सकता है कि शून्य हो गई। Now listen me लेकिन carefully. अब मुझे ध्यान से सुनिए। How can you create your own world? तो कैसे आप अपने स्वयं का संसार बना सकते हैं? By calling it everything to come in existence by the word of God, which is the Bible only. और आप अपने संसार को इस प्रकार से बुला सकते हो चीजों को नाम ले लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा से जो कि केवल और केवल बाइबल है। Bible says Bible कहती है everything has been created by Jesus, who is the word of God, और सारी चीजें यीशु मसीह के द्वारा से जो है उत्पन्न हुई and He just sustains them. और उसने उनको जो है बनाए रखा।
That is our God. और यही हमारा परमेश्वर है। Jesus, the Word of God. और यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, God created everything by the Word. और परमेश्वर ने हर एक चीज को जो है वो वचन के द्वारा बनाया, And the Word of God sustains everything. और परमेश्वर का वचन हर एक चीज को बनाया। Now you have an authority. आपके पास में अधिकार है। You might have lost everything. हो सकता है कि आपने सारी चीजों खो दी हो, Oh, do not remember those things. और उन चीजों को याद मत कीजिए। Because Isaiah 43:18 and 19 says, क्योंकि यशाया उसका 43 18 और 19 कहती है, Bible says, बाइबल कहती है, oh, whatever the things have happened in the past, don't remember them. और वे सारी चीजें जो भूतकाल में हो चुकी हैं उनको याद मत The कीजिए, bad effects of the old things and the bad things you should not remember again. और पुरानी चीजों का जो बुरे प्रभाव है उनको याद मत कीजिए। I am going to do a new thing for you. मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज करने जा रहा How हूँ। it works? और इसे कैसे कार्य करेगा? It works by using the authority of God through our lives. और वो हमारे जीवनों के द्वार से परमेश्वर के अधिकार को लेकर के कार्य करेगा। I glorify God. मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। Around 12-13 years और before, 12-13 वर्षों पहले I started praying. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, Lord, enable me to preach before the world in kind of television. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे योग्य बना कि मैं संसार में एक टेलीविजन के रूप में जो है लोगों के सामने में प्रचार कर सकूं, इस संसार के अंदर में। For immediately it didn't happen. और तुरंत ऐसा नहीं हुआ, Today also it has not happened. और आज भी नहीं हुआ, But something good and new God has started. लेकिन कुछ अच्छा और नया I परमेश्वर। started speaking by the name of Jesus Christ. और मैंने यीशु मसीह के नाम से बोलना शुरू किया। Today I am preaching to the world through this internet media. और आज मैं इस इंटरमीडिया के माध्यम से जो है दुनिया के सामने में प्रचार When कर the रहा हूं। physical church is और closed, जब वो भौतिक कलीसिया जो है बंद होगी, but God's house is always लेकिन open. परमेश्वर का भवन हमेशा खुला रहता है। Kingdom of God is always और open. परमेश्वर का राज्य हमेशा खुला रहता है। Spirit of God is always और open. परमेश्वर का आत्मा हमेशा खुला रहता है। God is working 24/7 in your lives and in your families and in your churches. Though the churches are closed physically, but God is at work with His authority. और परमेश्वर 24 घंटे 7 दिन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में और हर एक चीज में जो है वो कार्य करता है। God has given that और authority परमेश्वर ने वो अधिकार हमको दिया है to preach to the और nations. इस राष्ट्रों को प्रचार करने के लिए। This is the authority of और यही God. परमेश्वर का अधिकार है। But you need to speak boldly. और आपको हियाव पूर्ण तरीके से बोलना है। As God is carrying that, God's inbuilt power and abilities और there. जैसे कि परमेश्वर के पास में वो अधिकार और वो योग्यताएं When हैं, He says, जब वो कहता है things happens. चीजें होती है। You are a child of आप God. परमेश्वर की You संतान हैं। carry the same spirit of that living और God. आप वो जीवित परमेश्वर की समान आत्मा को साथ में लेकर के चलते You हैं। will say, आप कहेंगे and it will happen. ऐसा हो जाए, You will speak, आप कहेंगे it will come to pass. और ऐसा हो जाए। But what is our problem? लेकिन हमारी समस्या क्या We say है? like that. हम ऐसे कहते हैं, I am a poor man. मैं गरीब व्यक्ति I हूँ cannot become a rich man. और मैं अमीर व्यक्ति नहीं बन सकता। Oh, nobody cares और me. कोई मेरी देखभाल नहीं Nobody करता। loves me. कोई मुझे प्यार नहीं करता। Nobody is taking care of my और कोई भी life. मेरे जीवन की जो है वो देखभाल नहीं करता। Oh, family may not understand me. और मेरा परिवार मुझे नहीं समझता। These are the words of demons. और ये जो शब्द हैं ये दुष्टात्माओं की शब्द हैं। Start speaking the word of the heavenly Father, which is with the authority and और power. स्वर्गीय पिता के जो वचन है वो बोलना प्रारंभ किए जिसके पास में सामर्थ एवं अधिकार है। Listen me मुझे carefully. ध्यान से सुने। Bible speaks. और बाइबल कहती है Either you are a child of Satan or you are a child of God. या तो तुम शैतान की संतान हो या तो तुम परमेश्वर की संतान That's हो। why Bible says कारण से बाइबल either you should be warm or you should be cold. या तो आप गर्म रहिए या फिर ठंडे हो जाइए। But Bible says Bible कहती है, you have become lukewarm. लेकिन तुम गुनगुने हो, You are lukewarm. आप गुनगुने हो। Sometimes you speak, God is my God, who is my Father, He will provide me everything. और कई बार आप ऐसा कहते हैं कि मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मुझे हर एक चीज देगा। When you just move back, और जब आप पीछे मुड़ जाते हैं then you say, maybe God provide or not, I don't तो know. फिर आप ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि परमेश्वर देगा या नहीं That देगा। is your lukewarmness. और यही आपका गुनगुनापन है। God has called you to be the people who are walking with the authority and power of और God. परमेश्वर ने हमको ऐसे व्यक्ति के रूप में बुलाया है जो अधिकार और सामर्थ जो परमेश्वर का है उसके साथ में चले। What kind of authority? और किस प्रकार का अधिकार Things है? which are not in और existence. वे चीजें जो भौतिक रूप से है ही You नहीं, should call them by name. आपको उन्हें नाम लेकर के बुलाना है।
For है। example, उदाहरण के लिए you might have lost your jobs. हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी खो दी हो। You should start speaking in Jesus' name. The companies will call me, the big firms will call me, big hospitals will call me, and big, factories and government will call me, and they will say, oh, Mr. Deepak, you work with us और in Jesus' name. हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी खो दी हो, तो आप यीशु मसीह के नाम से ऐसा बोलना शुरू करें कि ये कंपनी जो है मुझे फोन लगाएगी, ये होटल मुझे फोन लगाएगा, ये फैक्ट्री मुझे फोन लगाएगी, अलग अलग जो ये संस्थाएं, जो व्यापारिक संस्थाएं, वो मुझे फोन लगा के कहेगी और मुझसे कहेगी कि श्रीमान दीपक आप यहाँ पर काम कीजिए। That is your God. यही आपका Why परमेश्वर don't you है। say Pramod? Are you Deepak? No, you are not Deepak. You are Pramod. You should have spoken like that. See, from here it starts. Authority starts from every point. और जो अधिकार है वो हर एक बिंदु से शुरू होता है। God has given this authority to Deepak. और ये जो अधिकार है ये परमेश्वर ने प्रमोद को दिया है। Amen. That's the right translation. God has given this authority to everyone. और ये जो अधिकार है परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को दिया God has है। given that authority to वो you. परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया When है। you speak in the name of Jesus, और जब आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं Shabbakarala, heaven is opened. तो स्वर्ग खुल जाता है। God has to do certain things in the name of Jesus Christ, which you are asking in the will of तो God. परमेश्वर को वो सारी चीजें जो परमेश्वर की इच्छा से करने के लिए आप मांगते हैं, परमेश्वर को वैसा करना पड़ता है। Matthew 11:12. मत्ती 11:12 Open with me. मेरे साथ में खोलें। मत्ती Matthew 11:12. 11 अध्याय 12 आयत। Very powerful word. बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण वचन है And it is important too. और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। And from the time of John the Baptist began preaching until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and violent people are attacking it. मत्ती 11:12 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Authority gives you entry into the heavenly realms in the name of Jesus Christ. Spiritually, you enter into the heaven. और जो अधिकार है वो आपको बल देता है स्वर्ग के उन स्थानों में जाने के But लिए। it do not give that authority to the people who are murmuring. लेकिन वो अपना अधिकार उन कुड़कुड़ाने वाले लोगों को नहीं देता। Listen me मुझे carefully. ध्यान से सुने। Israel lost so many blessings because they were the murmuring और people. इजराइलियों ने बहुत सारे चीजों को खो दिया क्योंकि वो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। Though they were the children of God, यद्यपि वो परमेश्वर की संतान the थे promise of God was with them. और परमेश्वर की वाचा उनके साथ में थी। Still they lost so many things. और तब भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को खो दिया। Why? क्यों? They were the murmuring क्योंकि वो people. कुड़कुड़ाने वाले लोग They थे did not know their authority. और उनको अपने अधिकारों के विषय में नहीं You know पता। your authority. आपको अपने अधिकारों के Do विषय में not पता है। murmur. और कुड़कुड़ाइए मत। But speak from the word of लेकिन God. परमेश्वर के वचन से बोलना Speak from the word of परमेश्वर के God. वचन से The word of बोलना God carries a power and authority in it. और परमेश्वर का वचन अधिकार और सामर्थ्य रखता है Don't not only use it as logos only. और केवल इसे लोगों के रूप में इस्तेमाल Use it in the कीजिए। form of और rhema. रेमा के रूप में इस्तेमाल When it कीजिए। becomes जब ये rhema, रेमा बनता है it produces तो power. यह जो है सामर्थ्य जो है उत्पादन करता है Generates capability. और वो जो योग्यता को बनाता है That is the word of ये God. परमेश्वर का वचन है। Bible says Bible कहती है there is a violence going on into the heaven, और स्वर्ग में एक युद्ध चल रहा है and violent take it by force. और जो वो बलवंत लोग होते हैं वो उसको अपने बल से जो है ले लेते हैं। God wants to make you a violent person against the Satan. और परमेश्वर आपको शैतान के सामने एक आक्रामक व्यक्ति बनाना चाहता है। Don't be violent against your pastor. और अपने पासवान के सामने में आक्रामक मत बनिए। Don't be violent against your husband. और अपने पति के सामने में आक्रामक मत बनिए। Don't be violent against your wife. और अपनी बीवी के सामने में आक्रामक मत बनिए। Don't be violent against your अपने children. बच्चों के सामने आक्रामक Don't be बनिए। violent against your parents. और अपने माता पिता के सामने में आक्रामक मत Don't be बनिए। violent against the believers. और विश्वासियों के सामने में आक्रामक Don't be मत violent against the non-believers. बनिए। और अविश्वासियों के सामने में भी आक्रामक मत Because बनिए। we carry the power of God and the authority of God. क्योंकि हम परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य को लेकर के चलते हैं। Glory be to और God. परमेश्वर को महिमा मिले। God has given you the और authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। God has given you the और authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Open with मेरे me साथ में खोले the book of Proverbs, नीति वचन chapter 18 नीति वचन उसका 18वां अध्याय and 21st verse. नीति वचन 18 अध्याय 21 नीति वचन उसका 18वां अध्याय एवं 21वीं आयत। The tongue can bring death or life. Those who love to talk
will reap the consequences. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Authority is given into your tongue. और जो अधिकार है वो आपकी जीभ को भी दिया है। What a powerful God we serve. कितने अद्भुत परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। This tongue, you know, this tongue और ये जो जीभ है don't have any bone. और उसके पास में हड्डी नहीं है, That's why it can go anywhere and तो everywhere. इसी कारण से यहाँ वहाँ कहीं भी चले, Up and down. ऊपर नीचे। Don't speak the negative things. और कुछ भी नकारात्मक चीजें मत बोलिए। When you speak the death, it will come to और you. जब आप मृत्यु बोलेंगे तो मृत्यु आपके पास में आ जाएगी, Because it carries both the authorities into your lives. क्योंकि इसके पास में दोनों की सामर्थ्य आपके जीवन में है। Bible says बाइबल कहती है। your tongue is having the power to speak the life. और बाइबल कहती है आपकी जीभ में वो सामर्थ्य है जो जीवन दे सकती है। Same God is saying you. और समान परमेश्वर आपसे This कहता है, morning, आज के सुबह I have given you the authority. मैं तुम्हें अधिकार देता I have given you the हूँ, मैंने authority. तुम्हें अधिकार दिया है। That authority is not for death. और वो जो अधिकार है वो मृत्यु के लिए It नहीं, is for life. वो जीवन के लिए And life of abundance. और बहुतायत के जीवन के And लिए life of eternity. और अनंत काल के जीवन When के the whole world is murmuring because of the pandemic. लिए। और जब सारा संसार जो है महामारी के कारण से कुड़कुड़ा रहा Children है, of और God. परमेश्वर की संतान, You have been given authority to speak life over your life, your family, and your endeavors of life. तो आज के समय में आपके पास में परमेश्वर ने अधिकार दिया है आपकी जीभ को कि आप अपने जीवन के ऊपर में जीवन की घोषणा करें, Over your families. आपके परिवार के ऊपर All the areas of your life. और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, Wherever you are lacking anything in your life. और आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी है, Start speaking prosperity into those things in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से उन चीजों के ऊपर में संपन्नता की घोषणा But your कीजिए। prosperity should start with the spiritual life. लेकिन आपकी संपन्नता जो है वो आत्मिक रूप से शुरुआत होती है। That's why 3rd John and the 2nd verse says. इसलिए तीसरे यूहन्ना तीसरी आयत कहती है, दूसरी आयत. 3rd John 2nd verse. और इसलिए तीसरा यूहन्ना उसकी दूसरी आयत कहती My है, son, मेरे बेटे, as you grow in the spiritual तो realm, जैसे कि तू आत्मिक चीजों में उन्नति करता you है, shall be prospering every area of हर your एक चीज में life. अपने जीवन की तू उन्नति कर। When you are spiritually growing, और जब आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, oh, the Holy Spirit will take control of your spirit and your soul and your body. तब जो पवित्र आत्मा है वो आपकी प्राण और देह और आत्मा में जो है वो नियंत्रण रखता When है। you grow spiritually, जब आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं you will speak the life and not the death. तो आप जीवन की घोषणा करते हैं, मृत्यु की नहीं। And that's how और इसी कारण से God is saying, if you are growing spiritually, यदि तो आत्मिक रूप में बढ़ रहा है you shall be growing in other aspects of life. तो आपको अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में भी बढ़ना है, God wants to do that. और परमेश्वर से करना But चाहता है। our problem is लेकिन that हमारी समस्या यह है, we don't want to grow in the authority of हम God. परमेश्वर के अधिकार में उन्नति नहीं करना चाहते, So we don't want to have more and more authority and dominion of God over our spiritual life and other areas of our life. और हमारी समस्या यह है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य को अपने जीवन के ऊपर में लेना नहीं चाहते। Grow in the authority of God. परमेश्वर के अधिकार में बढ़िए। God wants to take you to certain places where God wants that you should speak and things shall start happening in Jesus' और परमेश्वर name. चाहता है कि वो कुछ विशिष्ट स्थानों में आपको बिठाए। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ आपका है वो जो है अस्तित्व में आ जाए। God wants to give you supernatural और power. परमेश्वर को आपको अलौकिक सामर्थ्य देना चाहता God है। wants that you should walk in the supernatural authority. और परमेश्वर चाहता है कि आप अलौकिक अधिकार में चलें, But then you need to understand that you have to spiritually grow. लेकिन आपको उसके बाद में समझने की आवश्यकता है कि When you- आपको आत्मिक रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। When you grow in the Word of और जब आप God, परमेश्वर के वचन में बढ़ते when हैं, you grow in the worship, और जब आप आराधना में बढ़ते when you हैं, grow in the और prayers, जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, you will be able to grow spiritually तो आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। by not doing these three things. और केवल ये तीन चीजें करने के द्वारा से नहीं, है ना? Not doing these three things, और इन तीन चीजों को जब हम नहीं करते हैं we cannot grow तो spiritually. हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ You need सकते। to worship your God. आपको परमेश्वर की आराधना करना You है। know how the authority comes? आप जानते हैं कि अधिकार कैसे आता है? Because God comes in your life when we worship Him. और जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और हम उसकी आराधना करते हैं, No, when we worship Him, God comes into our lives. और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आता He है resides in our lives. और वो हमारे जीवन में रहता है। Then it is not our control on the spirit, soul and body. और तब जो है हमारा नियंत्रण नहीं रहता आत्मा, प्राण और देह पे, God has that वो control. परमेश्वर का नियंत्रण रहता है। Then He starts calling the things from zero. उसके बाद में वो शून्य से चीजों को बोलना शुरू करता है, And from zero,
और शून्य से He will make you hero. वो आपको एक नायक बनाता है। From zero, शून्य से He will make you heroine. वो आपको एक नायिका बनाता है। Oh, that is the nature of और यही God. परमेश्वर का स्वभाव है। He never chooses very big things. और वो बहुत बड़ी चीजों का चुनाव He नहीं करता। never, chooses a very wise और people. वो बुद्धिमान लोगों का चुनाव नहीं करता। He never chooses the very powerful और people. वो सामर्थ्य लोगों का चुनाव नहीं करता। But He chooses very weak, humble people. लेकिन वो एक नम्र और एक छोटे व्यक्ति को चुनता है Outpour His power into him. और अपने अधिकार को उसके। Light has gone, don't worry. और जो बिजली है वो जा चुकी है, लेकिन आप चिंता ना करें। Just put on the light. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर को महिमा। Glory be to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। Satan, शैतान, you cannot stop the work of God. और तू परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकता। Whether light is there or not. और बिजली वहाँ रहे या नहीं रहे, But God is there. लेकिन परमेश्वर वहाँ है। And God is the light. और परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। God is all power और God. परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, And He gives us the और वो power हमको सामर्थ देता है to do the mightiest things for the glory of God. परमेश्वर की महिमा में अद्भुत कार्य करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. This is my God's authority. और ये मेरे परमेश्वर का अधिकार है। This is my God's ये authority. मेरे परमेश्वर का अधिकार है। This is my God's ये authority. मेरे परमेश्वर का अधिकार है। Whatever you might have lost, जो कुछ भी आपने खो दिया, when we walk in the authority of तो God, परमेश्वर की उस अधिकार में चलते हैं। go forward. आगे बढ़िए, Don't stop. रुकिए मत, Go forward. आगे बढ़िए, Go forward. आगे बढ़िए। God will open the ways. और परमेश्वर मार्गों को खोलेगा। Current was off, और जो बिजली है वो बंद हो गई थी, but now it has come. लेकिन अब वो आ गई है। Authority of God is over everything. परमेश्वर का अधिकार हर एक चीज के ऊपर। That is my God and that is your यही God. मेरा परमेश्वर है और यही आपका परमेश्वर है। So your tongue carries the power of death and even of life. तो आपकी जो जीभ है उसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Whatever you will speak, और जो कुछ भी आप कहे it will come back to you. वो आपके लिए हो जाए। Third thing, तीसरी बात, from the same authority I am speaking about. और समान अधिकार के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. चिंता मत कीजिए। Satan is in trouble, we are not. और शैतान परेशानी में, हम परेशानी We में are not in trouble. और हम परेशानी में नहीं है। Third thing I want to say, और तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा, Romans 4:17. रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय, रोमियो चौथा अध्याय 17वीं आयत। रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय एवं 17वीं आयत। That is what the scriptures mean. When God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. और रोमियो 4:17 कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। What kind of authority you carry? और किस प्रकार का अधिकार आपके पास में है? Oh, what kind of authority you are carrying? किस प्रकार का अधिकार आप साथ में लेकर You के चलते can हैं? call the dead things to come into life. और आप जो है मृत व्यक्ति को जीवन में ला सकते हैं। Dead things. और मृत चीजें, Your finances might have been died. और हो सकता है कि आपका वित्त का जो क्षेत्र है वो मर चुका हो। Spiritual life might have been died. आत्मिक जो क्षेत्र है वो मर चुका हो। You might have gone away from God. और हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर चले गए। But God has a power and authority. लेकिन परमेश्वर के पास में अधिकार और सामर्थ्य है। He has given that authority to और you. उसने वो अधिकार आपको दिया है। And God called Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, 75 years of age. और 75 साल की उम्र में Nobody can become a अब कोई father. भी पिता नहीं बन सकता। God said to him, परमेश्वर ने उससे कहा, I will give you a son और मैं तुझे एक बेटा दूंगा who will be you will taking the inheritance in your life. और वो जो है तेरी विरासत को साथ में लेकर के He will चलेगा be your legal heir. और वो तेरा जो है उत्तराधिकारी होगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में? God is working on that part. और परमेश्वर उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। Things which are died into और your सारी lives. चीजें
जो आपके जीवन में मृत्यु हो गई है You should not see them in the dying और nature. आप उन्हें मृत अवस्था में नहीं देखेंगे। Start calling them in the name of Jesus to the life in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से उनको जीवन के अंदर में बुलाहट दीजिए। Bible says Sarah lost the power and energy into her body. और सारा ने जो अपने उसकी देह में जो है वो उस बल को और सामर्थ्य को खो दिया था। Scientifically, और वैज्ञानिक रूप से she was unable to carry a child into her womb. और वो अपने गर्भ में संतान पैदा करने की योग्य नहीं थी। She was just ineligible. और वो अयोग्य थी। She lost that power. और उसने वो बल खो दिया था। No more ability of carrying the child into the womb. और अब उसके गर्भ में बच्चा होने की जो वो जो सामर्थ्य वो नहीं थी। That time God said, और उस समय परमेश्वर ने कहा, Abraham, अब्राहम, I will give you a son. मैं तुझे एक संतान दूंगा। Bodies became like of a, dead in power. Dead in power. और हम जो शरीर है वो जो सामर्थ्य में मृत हो गई। And the bodies were there. और जो शरीर वहां पर था। Abraham and Sarah, they were having the bodies. और जो अब्राहम और सारा थे उनके पास में शरीर था। But there was no power in it. लेकिन उसके अंदर में कोई बल नहीं। Today you may have the life. और आज हो सकता है आपके पास में जीवन हो। Life may not be powerful. और जो जीवन है उसमें सामर्थ्य ना हो। What you need to do? आपको क्या करना है? He is the God who just raises the dead things to life. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मृत चीजों को जीवन में लाता है। Hallelujah. And He will give you the life in the dying areas of your life. और वो आपके जीवन की मृत चीजों के क्षेत्र में आपको जीवन देगा। That is our वो God. परमेश्वर है। That is our God. यही हमारा He परमेश्वर will है। never leave thee. और वो आपको नहीं छोड़ेगा। Not forsake thee. और आपको नहीं त्यागेगा। He's saying, कह रहा है, I have hold on your right तो मैंने hand. तेरा दाहिना हाथ I have hold on your right मैंने hand. तेरा दाहिना हाथ You are पकड़ा। mine. मेरा I have है। called you by name. और मैंने तुझे नाम लेकर You are बुलाया my है। son. तू मेरा बेटा है। You are my daughter. मेरी बेटी है। You are my child. तू मेरी संतान To है। make you child. और To make you my child. तुझको मेरा संतान बनाने के I लिए gave my मैंने अपनी child. संतान को दिया। I gave my son. मैंने अपने बेटे को He दिया। was crucified. और वो क्रूसित हुआ। He was dead. और वो मर गया। I raised him on the third day. मैंने तीसरे दिन उसे मृतकों में से जिलाया। I carry the power of raising the things from the dead life. वो मेरे पास में अधिकार है कि मैं मृत चीजों को जीवित अवस्था में लेकर के आऊं। Jesus rose on the third day. यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। The tombs could not keep him और forevermore. कब्र उसे हमेशा के लिए नहीं रोक पाई। That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है। Who raised him from the dead? और उसने उसे मृतकों में से जिलाया। Who is the one who has raised him from the dead? और वही है जो मृतकों में से जी उठा। वो कौन है जिसने उसको मृतकों में से जीवित किया? His name is I am that I am God, and He has given that authority to you to speak over the deadly things of your life to come into life in और Jesus' name. वही है मैं जो हूँ सो परमेश्वर है जो यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, जो आपके जीवन में से मृत चीजों की अवस्था को जीवन में लेकर के आएगा। Glory be to God. परमेश्वर को महिमा मिले। The things are dying in your life. और यदि आपके जीवन में चीजें मृत अवस्था में, Don't give up. तो आप हार मत मानिए। Don't lose the hope. आशा मत खोइए। Our God is alive. हमारा परमेश्वर जीवित His है। authority is alive. उसके अधिकार जीवित है। What His authority does? What His authority और does? अधिकार क्या करता है? Oh, His authority is bringing dead things to the life. और उसका जो अधिकार है वो मृत चीजों को जीवन में लेकर के आता है। What a powerful God you are serving this और कितने ही morning. सामर्थ्य परमेश्वर की सेवा आज सुबह आप करते हैं। My dear और brother, मेरे भाई, my dear और sister, मेरी बहन, don't lose the hope. आशा मत खोइए। Cheer up this morning. और आज की सुबह में हर्षित हो जाइए। We carry the presence of Most High और God. हम सर्वोच्च परमेश्वर की उपस्थिति को साथ में लेकर के He चलते has हैं। got all the authority. Oh, He has given it to our lives. और उसके पास में जो सारे अधिकार है उसने हमारे हमको दिए हैं। Authority which was in Jesus. और वो अधिकार जो यीशु के पास थे, Because He is the biggest brother of every believer. क्योंकि वो प्रत्येक विश्वासी का सबसे बड़ा भाई है। And because He was raised from the dead first person. क्योंकि वो मृतकों में से जी उठने वाला पहला व्यक्ति था। And who is living और forevermore. वो हमेशा जीवित रहा। He is living और forevermore. वो हमेशा के लिए जीवित है। That's how He is the firstborn. और इसी कारण से वो पहलोठा है। Amen. Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? The power and authority which was given to Jesus. और वो अधिकार और सामर्थ्य जो यीशु मसीह को दिए गए थे, Same authority God is giving to you this morning. और आज के समय में वही समान अधिकार परमेश्वर आपको दे रहा है। Beloved child of God, परमेश्वर की प्रिय संतान हो, receive this authority in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इन अधिकारों को ग्रहण
कीजिए Start roaring like Lion of Judah. और यहूदा के सिंह के समान दहाड़ना शुरू कीजिए, Your master is the Lion of Judah. क्योंकि आपका स्वामी जो है वो यहूदा का शेर है। Satan is also, copying the Lion of Judah, but he is a duplicate copy. He is not the original copy of Lion of Judah. You are the original copy of Lion of Judah. और जो शैतान है वो भी यहूदा के सिंह को जो है नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो झूठा है, क्योंकि यहूदा के जो शेर है वो केवल यीशु मसीह एवं आप हैं। But he is a devouring lion. Satan is a devouring lion. और जो शैतान है वो फाड़ के खाने वाला शेर है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ है? Have you seen that Satan is devouring your life? क्या आपने देखा है कि शैतान आपके जीवनों को फाड़ रहा है? Cheer up this morning. आज की सुबह में हर्ष God is giving you the power and authority. और परमेश्वर आपको अधिकार एवं सामर्थ्य दे रहा है। You will tear the power of the enemy. आप दुश्मन की जो सामर्थ्य है उसको फाड़ देंगे। I am a young man of 47 years old. और मैं 47 साल का जवान व्यक्ति हूँ। Is your age 47? He wants to become more old. What he is? I am a young man of 47. और मैं 26 साल का जो है जवान व्यक्ति हूँ। Amen. But I just found that power and authority in me to just tear up the works of the enemy. वो मैं अपने अंदर में उस सामर्थ्य को देखता हूँ जो मैं शैतान के कार्यों को फाड़ सकता हूँ। Yesterday night I was talking to Pastor Robert in Delhi. और मैं बीती रात को पास ऑन रॉबर्ट से दिल्ली में जो है उनसे बात कर रहा And था। I said to him, और मैंने उनसे कहा, we shall be the lions like our master lion of Judah till the last breath of our life. और हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक हमें हमारे स्वामी जो यहूदा का शेर है उसके समान शेर बन के जीना है। And we will be there like that. और हम इस प्रकार से होंगे। And into the last moment of our life, और हमारे जीवन की जो अंतिम श्वास होगी, we shall be and power of God against the powers of the enemy. और हम परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य शैतान की सामर्थ के ऊपर में एक सिंह के समान दहाड़ेंगे। 3 rights I have spoken with you और 3 today. अधिकार मैंने आज आपसे कहे। I don't want to take much of your और time. मैं आपका अधिक समय नहीं लेना I know चाहता। already I have spoken around 1 hour. और मैं जानता हूँ कि मैं लगभग 1 घंटा बोल चुका हूँ, But I want लेकिन मैं चाहता that हूँ you should receive the power and authority from God मैं today. चाहता हूँ कि आज आप परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ को ग्रहण First करें। thing, पहली चीज you should remember आपको याद रखना है, that you have been adopted by God. आप परमेश्वर के द्वारा लेपालकपन के द्वारा से लिए हुए संतान हैं। You have become the son of God and the daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र एवं पुत्री हैं। Then second thing, दूसरी बात, God is your protection. और परमेश्वर आपकी सुरक्षा है। First thing, पहली चीज, God has given that authority that you should be calling him Abba and Father. और पहली चीज परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप उसको अब्बा एवं पिता कहकर संबोधित करें। Second thing, दूसरी बात, God is protecting you और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है from every nook and corner. हर एक दिशा से। Third thing, तीसरी बात, Father has given you the और authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। Write in the inbox. इनबॉक्स में लिखिए, Write in the inbox. इनबॉक्स में लिखिए, My Father Jehovah मेरा पिता यहोवा has given me the authority. मुझे अधिकार देता है Oh, I can be having the life and not the death. और मेरे पास में जीवन होगा, मृत्यु नहीं। I'm speaking about different aspects of life. और मैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बात कर रहा हूँ। Physical death is going to be और there. भौतिक रूप से मृत्यु वहाँ पर होगी। But I'm speaking about other things dying in your life, मैं दूसरी चीजों के विषय में बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन में है, which are in dying condition. जो कि मृत अवस्था में है। I'm speaking about those things. मैं उन चीजों के विषय में बात कर रहा हूँ God has given you the और authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Right. लिखिए, As God gave the authority to Jesus, और जैसे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, He has given to me. उसने मुझे दिया, Jesus' authority is mine. और यीशु मसीह का अधिकार मेरा है। Right. Jesus' authority is mine. ऐसा लिखिए, यीशु का अधिकार मेरा है। Right. Father's authority is mine. ऐसा वहाँ पर लिखिए, पिता का अधिकार मेरा है। And right, I will call the dead things to life in Jesus' और name. ऐसा लिखिए कि मैं मृत चीजों को जीवन में यीशु मसीह के नाम से लाऊंगा। Last thing I will share, testimony I will share, and I will close. और मैं गवाही आपसे साझा करूंगा, उसके बाद में हम समाप्त I करेंगे। went to a village where 69 people of same family were living in under one roof. और मैं गांव में गया जहां एक परिवार के 69 सदस्य जो है वो एक ही छत के नीचे रहते थे। And there was a birthday of certain boy in their house, and I was called to minister unto them. और जो एक जो
बेटा था, उसका जन्म दिवस था और मुझे वहाँ पर सेवकाई के लिए बुलाया था। I went there, मैं वहाँ गया, I ministered, मैंने सेवा की all people were blessed. और सारे लोग आशीषित हुए। At the last I called, और अंत में मैंने उसे बुलाया and do you like to get prayed for certain things? और मैंने उससे कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इन चीजों के लिए तुम्हारे लिए No, प्रार्थना to all करूं? people I said, और सारे लोगों से मैंने कहा, do you want that I should pray for और you? सारे लोगों से मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? Nobody came. और कोई नहीं आया। After that we had a powerful lunch. उसके बाद में हमने दोपहर का बहुत ही अच्छा खाना खाया, Mutton curry, chapatis and jeera rice. मटन करी, रोटी, चावल जीरा वाले, बहुत अच्छा। And after eating, और खाने के बाद one of the person came and he said, Pastor, can you pray for me? और एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे कहा कि पासवान जी क्या आप मेरे लिए प्रार्थना He करेंगे? was from that big family, और joint family. वो उस संयुक्त परिवार जो था उसमें से था। And I said, okay, I'll pray. और मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। While I started praying for him, और जैसे मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया other 68 members came around me. तो जो बाकी जो 68 लोग थे वो उन्होंने मुझे घेर लिया And I started praying for everyone और now. मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना कर रहा That हूँ। was the first phase when I ministered to them. और जो पहला सत्र था मैंने उनके लिए सेवकाई किया After the lunch, it was unofficial session of praying for people. और दोपहर के खाने के बाद जो है अनौपचारिक रूप से मैं उनकी सेवकाई कर रहा था। And then when I was praying, और when I was praying for them, और जब मैं उनकी प्रार्थना कर रहा था they were the 5 brothers' families. They were living in one house. और 5 भाइयों का एक परिवार था जो उस एक घर में रह रहा था। And one brother came एक भाई आया with his wife. उसकी पत्नी के साथ, And he said, उसने कहा, Pastor, I don't have a child. ओ पासवान जी मेरे पास में संतान नहीं है 5 years already gone. और 5 साल हो चुके हैं, Sorry, 7 years already gone. 7 साल पहले ही हो चुके हैं, And I'm not having a child. मेरे पास में संतान नहीं। I said, let's pray. मैंने कहा आइए प्रार्थना। I started praying. मैंने उनके लिए प्रार्थना करना In शुरू mid of the किया। prayer, प्रार्थना के बीच में Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा stop the prayer. और प्रार्थना रोक दो। I stopped the prayer. मैंने प्रार्थना रोक दी It was very unique experience for me. और ये मेरे लिए एक बहुत ही विचित्र अनुभव था। I never did like that और मैंने before. इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। Starting a praying and stopping it in between. और प्रार्थना करने के बाद मैं उसको बीच में नहीं रोकता। So I opened my eyes. तो मैंने अपनी आंखों को I said, you also open the eyes. और मैंने उनसे कहा कि आप भी अपनी आंखों को खोले। Then they said, what happened, Pastor? उसके बाद उन्होंने कहा क्या हुआ पासवान? I said, Holy Spirit revealed me, sir, you are beating your wife very much. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि आप अपनी पत्नी को बहुत मारते हैं। Then immediately that man looked towards his wife. और तुरंत ही जो पति था उसने अपनी पत्नी की ओर देखा And he said, और उसने कहा why did you tell everything to the pastor? और क्यों तुमने पासवान साहब को सारी चीजें बताई? I said, she never told me, listen me here. और मैंने उससे कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे सुनो। It's not she. और ये स्त्री नहीं है जिसने मुझे बताया, God, the Holy Spirit has told me पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है that you are beating your wife, without any stops and ifs and buts. और तुम अपनी पत्नी को जो है बहुत ही बुरी रीति से मारते हो Even nobody can stop you in doing so. और जब तुम्हें मारते हो तो कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकता Your elder brother cannot और stop. तुम्हारा बड़ा भाई नहीं रोक Your सकता, elder sisters cannot stop. तुम्हारी बड़ी बहन भी नहीं रोक सकती, Your niece and your nephews cannot stop. आपके भांजे या भतीजे या भाजी या भतीजियां भी नहीं रोक सकती, Nobody can stop. कोई भी तुम्हें नहीं रोकता Up है। to that level you are beating your wife. और उस स्तर तक तुम अपनी पत्नी को मारते हो। I said, are you ready to accept this sin or not? तो क्या तुम तैयार हो इस पाप को मानने के लिए? He said, Pastor, I am beating very much my wife. और उसके बाद उसने कहा कि हाँ पासवान जी मैं अपनी पत्नी को बहुत मारता हूँ। Then Holy Spirit said, उसके बाद में पवित्र आत्मा ने ask कहा him to ask forgiveness from the wife as well as from the God. और उसके बाद में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इनसे कहो कि अपनी पत्नी से एवं परमेश्वर से माफी मांगे। And his Holy Spirit said, और जो जैसे ही पवित्र आत्मा ने कहा if I will give the child into the womb of his wife, और यदि मैं इसकी पत्नी के गर्भ में संतान दूं in the similar state that if he is beating his wife, और समान रीति से जब वो अभी इसको मारता है what will happen? क्या होगा? That child will die inside the womb. और जो संतान है वो गर्भ के अंदर ही मर जाएगा And he will not be able to have the son. और ये जो है ये संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे They will not have children. और उनके पास में संतान नहीं That's होगी। why I have stopped giving the child into her womb. और इसी कारण से मैंने इसके गर्भ में संतान नहीं दी। Dying person can do anything. और Dying person can do anything. मरता हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। That's a probe in Hindi. और ये हिंदी की एक
कहावत है. कहावत है। Okay, you know, dying person can do anything. मरता हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, Anything you tell him, और कुछ भी आप उससे he's ready to do that. वो उसे कर देगा। Immediately he joined the hands. उसके बाद में तुरंत उसने I was standing in before them, और मैं उसके सामने पे खड़ा था, and he was saying, "Father, forgive me," and he said to my wife, "I asked forgiveness." और उसने मुझसे कहा कि पिता मुझे माफ कर, और उसने अपनी पत्नी को भी कहा कि मुझे माफ In Jesus' name, amen. कर, यीशु के नाम से आमीन। I said, "Okay, now it is the time to pray for you." और मैंने कहा कि हाँ अब ठीक है, अब सही समय तुम्हारे लिए I प्रार्थना laid करना। my both hands upon और them. मैंने अपने दोनों हाथ उनके ऊपर में I रखे। started praying. मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, Prayer is over, प्रार्थना खत्म हुई and said, "Amen." और मैंने कहा आमीन। I left the house, मैं घर को छोड़ दिया, and God said one thing. और परमेश्वर ने एक बात कहा, That was the 10th February. और वो 10 फरवरी था। God said, परमेश्वर ने within कहा 1 year, एक साल के अंदर I will visit this family. मैं इस घर के पास में जाऊंगा, I मुलाकात करूंगा. And I will give a child on the lap of this woman and the husband. और मैं इस महिला की गोद में जो है एक संतान को देखूंगा, And they will be able to carry, you know, the child after 1 year into their hand. और एक वर्ष के बाद में वो अपने हाथों में जो है वो एक संतान को लिए होंगे। I came back to Bhopal मैं भोपाल वापस आया and I forgot even. और मैं सारी चीजें भूल गया। Next year, अगले वर्ष, it was 9th February, और वो 9 फरवरी का दिन, and he called me, उसने मुझे फोन किया, "Pastor, पासवान I साहब, am so and so, मैं वो व्यक्ति हूँ, and you came to my house in the village." आप गांव में मेरे घर पे आए I थे। said, I know, Baba. और मैंने कहा कि हाँ भाई तुझे पता I है, recognize you. मैंने That पहचान लिया, I came to your house. मैं तुम्हारे घर आया था। He said, "Pastor, there is a good news." और उसने कहा कि पासवान जी खुशखबरी है। I said, "What is that good news?" मैंने कहा कि क्या खुशखबरी है? Last year you said, और पिछले वर्ष आपने कहा था "Oh, in 1 year you will have a child." एक वर्ष के अंदर तुम्हारे पास में संतान That was होगी। 10th February. वो 10 फरवरी का दिन था। Now today is the 9th आज February. 9 फरवरी का दिन है, Last day of the 1 year. और इस वर्ष का अंतिम दिन है। And my wife is going into the labor room now. और मेरी जो पत्नी है वो उस कक्ष में जा रही है जहाँ पर संतान उत्पत्ति Please होती है। pray for my wife. कृपया कर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना And the करें। child which is going to come into this world. और इस संसार में जो बच्चा आने वाला है, I said, "Put on your loudspeaker of the तो मैंने mobile." कहा कि तुम्हारे मोबाइल का लाउड स्पीकर चालू करो। Put it on. उनने चालू I किया। prayed. मैंने प्रार्थना की। After half an hour, और आधे घंटे बाद a message came again. और एक बार वो जो संदेश है आया, I could not see him और मैं उसे नहीं देख पाया, because he was not in the smartphone, क्योंकि वो जो है उस समय उसके पास में स्मार्टफोन नहीं था, and he was that time even it was not a WhatsApp calling of video, और उस समय में वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप जैसी कोई चीज भी नहीं थी। and he must be dancing, you know, और हो सकता है कि वो जरूरी से जो डांस कर रहा and he must be jumping, और वो कूद रहा and he said, होगा। "Pastor, और उसने कहा पासवान I साहब got a baby boy." मेरे पास में लड़का हुआ है। I said, "Thank the Lord और मैंने कहा कि परमेश्वर का who धन्यवाद told you to not beat your wife. जिसने तुमको बताया कि अपनी पत्नी को मत मारिए Be in good peace, और शांति से रहिए। and peace must be given to your family by God. He has given that peace to और you. परमेश्वर ने आपके परिवार को शांति दी है। Authority is there to bring the dead things into life. अधिकार के पास में वो सामर्थ्य है जो मृत चीजों को जीवित अवस्था में लाए। Just to encourage your faith, I shared this testimony. और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने इस गवाही को आपके साथ I tell you, I am not a big man, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, but I carry the presence and authority of that same God to whom you are serving this morning. लेकिन आज की सुबह में आप जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उस परमेश्वर की सामर्थ एवं अधिकार को मैं अपने साथ में लेकर के The चलता हूँ। same God, when He can do it through me, और वही परमेश्वर जो मेरे द्वारा कर सकता He है will do it through you वो also. आपके द्वारा भी कर सकता He है। wants to give you that authority. वो आपको अधिकार देना चाहता Would है। you like to have that authority in your life? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में उस अधिकार को Would you लेना? like to have authority in your life? क्या आप अपने जीवन में उस अधिकार को लेना चाहते Would हैं? you like to have authority in your life? क्या आप अपने जीवन में अधिकार लेना This is चाहते your हैं? time. ये आपका समय है। You might have lost everything in your life. हो सकता है कि आपने अपने जीवन में सारी चीजों को खो दिया। I'm closing here. मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। Do not look towards those losses. और उन हानि की वस्तुओं के ऊपर में आप ध्यान मत दीजिए। Concentrate on your God. अपने परमेश्वर पे आप मनन He कीजिए wants to give you that authority and power in your life. और वो आपके जीवन में वो अधिकार और सामर्थ्य देता है। Can you call him Abba? क्या आप उसे कह सकते हैं अब्बा? Can you call him my dada? क्या आप उसे कह सकते हैं हे मेरे पिता?
Daddy. पिता, Can you call him Daddy? क्या आप उसको कह सकते हैं पिता? Daddy. पिता, I come before thee in Jesus' name. मैं आपके सामने में यीशु के नाम से आता And हूँ। from all nooks and corners, हर एक दिशा से, हर एक first क्षेत्र of all, you protect me. से आप मुझे सुरक्षित कीजिए। Protect me, O God. मुझे सुरक्षित The कीजिए। world is perishing by the pandemic. और जो संसार है वो महामारी के कारण से नाश हो रहा है। Some people are saying, कुछ लोग कह रहे हैं after 1 month there will not be any pandemic. एक महीने बाद कोई महामारी नहीं होगी। And some people are saying, कुछ लोग कह रहे हैं it will go up to the next और year. ये अगले वर्ष तक जाएगा। But God is saying, लेकिन परमेश्वर कहता I है have my authority which I have given to मेरे you. पास में अधिकार है जो मैंने आपको दिया। If you will exercise that यदि authority, आप उस अधिकार का अभ्यास करें you will not fear the pandemic. तो आप महामारी से नहीं डरेंगे। You will not fear the effects of the pandemic. तो आप महामारी के उन प्रभावों से नहीं But डरेंगे, you shall be bold enough to face that. लेकिन आपके पास में हिया होगा उसका सामना करने When people are falling down and down, और जब लोग नीचे और नीचे गिरते हैं God will raise you up and up with the authority तो of power. परमेश्वर अपने अधिकार के द्वारा से उनको ऊपर और ऊपर उठा। That is my God. ये मेरा परमेश्वर, That is my God. ये मेरा Would you परमेश्वर। like to have that authority in your life? क्या आपके जीवन में आपको अधिकार चाहिए? Third thing I spoke to you. तीसरी चीज मैंने आपसे कही, God wants to give you the authority. परमेश्वर आपको अधिकार देना Are चाहिए। you ready? क्या आप तैयार हैं? God will not give you forcibly. और परमेश्वर आपको जो है जबरदस्ती नहीं देगा। No, no, no. When you ask Him, जब आप मांगेंगे He will give तो you. वो आपको देगा। He is a gentle God. और वो Sabya Parmeshwar. सभ्य परमेश्वर He is a gentle God. सभ्य He is a परमेश्वर very gentle और God. बहुत सभ्य परमेश्वर। Oh, He don't do anything forcibly. और वो जो है जबरदस्ती कुछ चीजों को नहीं करता। Satan does everything forcibly. और जो शैतान है वो सारी चीजों को जबरदस्ती Demons करवाता do everything forcibly. है। दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती सारी चीजों को कराता है। God does everything gently. लेकिन जो परमेश्वर है सभ्यता पूर्ण तरीके से सारी चीजें करवाता Are you है। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Close our eyes. आंखें बंद करें, Close our eyes. अपनी आंखें बंद करें। Are you tortured by the people in the world? क्या आप इन संसार के लोगों के द्वारा प्रताड़ित हैं? Are you tortured by the situations of your life? क्या आप अपने जीवन की परिस्थिति के द्वारा से Are प्रताड़ित you हैं? tortured by your families? क्या आप अपने परिवारों के द्वारा से प्रताड़ित Are हैं? you tortured by your parents? क्या आप अपने अभिभावकों के द्वारा से प्रताड़ित हैं? Are you tortured by your children? क्या आप अपने बच्चों के द्वारा से प्रताड़ित Are हैं? you tortured by your colleagues? क्या आप अपने सहकर्मियों के द्वारा से प्रताड़ित Are you tortured by your neighbors? हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों के द्वारा से प्रताड़ित हैं? Are you tortured by different classes of society in the life? और ये क्या आप अपने जीवन के समाज में अलग अलग लोगों के द्वारा से प्रताड़ित हैं? There is only one God केवल एक ही who परमेश्वर can give you the authority. जो आपको अधिकार देता And He wants to give that authority to है और you. आपको वो अधिकार देना चाहता है। When you will stand with that authority, जब आप उस अधिकार के साथ में खड़े होंगे people will bow down who are standing against you. तो लोग आपको दंडवत करेंगे और आपके सामने, Because they will not see you. क्योंकि वो आपको नहीं देख They पाएंगे, will see the power and authority of God in you. लेकिन वो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य और Are you अधिकार with me? देखेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? Are you perplexed in your life? क्या आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं? No. क्या आप अपने जीवन में छिन्न भिन्न हो चुके हैं? You don't have any hope in your life. आपके जीवन में आपके पास में कोई आशा नहीं है, You don't have any faith in your life. आपके जीवन में कोई विश्वास नहीं है। Faith can be given by the Bible alone. वो जो विश्वास है वो केवल बाइबल के द्वारा ही दिया जा Bible सकता है। says, बाइबल कहती है when you read the scripture, जब आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, when you meditate the जब scripture, आप इसका मनन करते हैं, then your faith is growing. उसके बाद में आपका विश्वास बढ़ता है, Then your faith is growing. उसके बाद आपका विश्वास बढ़ता है। Dear child of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, it is your right to have the authority of God. ये आपका अधिकार है परमेश्वर के अधिकार को लेना, It can be given through Bible only. और ये केवल बाइबल के द्वारा ही दी जा सकती It can be given through prayers है। only. ये केवल जो है प्रार्थना के द्वारा दी जा सकती It can be given through only by praying to है, God. और ये केवल परमेश्वर के द्वारा से प्रार्थना करने के द्वारा दी जा सकती है। Don't look at your situation. अपनी परिस्थिति को मत देखिए, Look at your God. अपने परमेश्वर को, Look at your God. परमेश्वर को He देखिए। wants to give you the power and authority वो आपको सामर्थ्य और अधिकार to देना चाहता है। trample your enemy below your feet. आपके दुश्मन को आपके पैरों के नीचे करने की। I'm speaking about Satan and the demons. मैं शैतान और दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा You will trample them हूँ। आप उनको कुचल देंगे because they are your enemies. क्योंकि वे आपके दुश्मन हैं। People are standing against you, लोग आपके सामने में खड़े होंगे विरोध में, but they are not the ones. लेकिन वो नहीं है। But demons are working through their lives. लेकिन दुष्ट आत्मा है जो उन लोगों के जीवन के माध्यम से You आपके need to विरोध- destroy the demons and Satan below your feet. आपको अपने पैरों के नीचे शैतान और दुष्ट आत्माओं को रौंदने की आवश्यकता है। For that very reason, God is giving you the power and authority. इसी कारण से परमेश्वर ने आपको अधिकार सामर्थ्य दिया। Whatever you have lost जो कुछ आपने खोया is lost. वो खो चुके हैं। Don't look at back.
पीछे मत देखिए। God wants to do the new things. परमेश्वर नई चीजें करने जा रहा है। God will make a way in the desert, परमेश्वर मरुस्थल में मार्ग निकालेगा and in the dry land He will flow the rivers for you और सूखी भूमि में वो आपके लिए नदियां बहाएगा by giving His power into your life. आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य को You देगा। shall speak those things, आप उन चीजों को बोल पाएंगे। and you shall receive the power. आप उस अधिकार को पाएंगे। You shall receive the power. आप उस अधिकार को पाएंगे। You shall receive the power and authority of God. आप उस परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। But intimacy must be there with God. लेकिन परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता होना बहुत आवश्यक It is only possible when you will not sin. है और ये केवल तभी संभव है जब आप पाप ना Or करें। if you are in sin, यदि आप पाप में हैं you can ask forgiveness from तो आप God. परमेश्वर से माफी मांगें। God is capable of forgiving you, और परमेश्वर योग्य है आपको माफ करने की। and He wants to forgive your sins, वो आपके पापों के लिए भी माफ करे and He wants to make you a person of authority and power of God. और वो परमेश्वर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जिसके पास में परमेश्वर का अधिकार एवं सामर्थ्य हो। If you are ready to receive the authority, यदि आप उस सामर्थ्य अधिकार को लेने के लिए write it तैयार down in the box. तो उस इनबॉक्स में लिखिए, Father, पिता I want authority of yours. मैं आपका अधिकार चाहता हूँ। Father, पिता I want the authority which was in Jesus. मैं वो अधिकार चाहता हूँ जो यीशु के पास थी। Jesus, give me authority. यीशु ने मुझे अधिकार दिया। Jesus, you give me authority. यीशु मसीह आपने मुझे अधिकार दिया। No, you give me authority. आप मुझे अधिकार दीजिए। You give me authority, Jesus. आप मुझे अधिकार दीजिए यीशु। Give me मुझे authority. अधिकार दीजिए। Father, give me that power. पिता मुझे सामर्थ्य दीजिए। Give me that authority मुझे वो अधिकार दीजिए which was on Jesus. जो यीशु मसीह के ऊपर में था When He was walking on the face of the और earth. जब वो इस संसार के अंदर में था। Today is my time to walk on the face of the earth. आज मेरा समय है इस संसार में चलने का। I want that authority. मैं उस अधिकार को चाहता हूँ। If that is your case, और यदि ये आपके संदर्भ में है God is giving you the authority right now. तो इसी समय परमेश्वर आपको अधिकार देगा। I may not see your hands now, मैं आपके हाथों को नहीं देख सकता but God is looking at your hearts. लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की ओर God is looking at your spirits. परमेश्वर आपकी आत्मा की ओर देखता है। When you are writing here your declaration जब आप यहाँ पर लिखते हैं ये घोषणा है that I want the authority of God. कि मैं परमेश्वर के उस अधिकार को चाहता हूँ That Jesus, please give me the authority कि यीशु मसीह कृपया कर मुझे वो अधिकार which दीजिए was upon you. जो आपके ऊपर था। Write it down. लिखिए This is your declaration before God. ये परमेश्वर के सम्मुख का आपका घोषणा है। This is declaration before God. ये परमेश्वर के सम्मुख का आपकी घोषणा है। And when you declare it जब आप घोषणा करें in Jesus' name, यीशु नाम से Bible says in John 16:24, बाइबल कहती है यूहन्ना 16:24 में till to date, आज तक you have not asked me anything. तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। If you'll ask यदि तुम मांगो in Jesus' name, यीशु नाम में and my Father will give you, मेरा पिता तुमको so देगा that your joy shall be full. ताकि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। When you receive the authority of God, जब आप परमेश्वर के अधिकार को ग्रहण your करें joy will be full. तो आपका आनंद Your पूर्ण joy shall be full. तो आपका आनंद Your पूर्ण joy shall be full. आपका आनंद You पूर्ण will be a joyful person. आप एक आनंदित व्यक्ति हो। Now I'm going to pray. और अब मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। Let's look toward God. आइए परमेश्वर की ओर देखें। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम से I bring my dear brothers and sisters who are watching me, Lord. मैं अपने प्रिय भाई और बहनों को जो मुझे देखते हैं आपके सम्मुख में लाता हूँ। They have lost the authority and power in their lives, O God, which was coming from the presence of God and coming from God from heaven, O Lord. और जो स्वर्गीय पिता की ओर से और स्वर्गीय पिता की उपस्थिति से इनके जीवन के अंदर में अधिकार एवं सामर्थ आता है, इसको वो खो चुके हैं खुदा। So many people lost it, O बहुत God. सारे लोग इसे खो चुके हैं। Even Abraham lost physical power, O और God. अब्राहम ने भी जो शारीरिक जो बल है उसको खो दिया था। Sarah lost the physical power, O God. सारा ने भी जो शारीरिक बल है वो खो दिया था। But your authority gives power to the deadly things and bring them to life in Jesus' name. लेकिन आपका अधिकार सामर्थ्य देता है मृत चीजों को जीवित अवस्था में लाने के लिए। Same authority. समान अधिकार। Lord, I just allow those people who are praying with वो me परमेश्वर में अनुमति देता हूँ वे लोग जो मेरे साथ में प्रार्थना करते in हैं Jesus' name, यीशु नाम से with your presence, O आपकी God. उपस्थिति से It shall come and abide into their hearts in the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से इनके हृदय में प्रभु जी बस जाए। Let their spirits rise in the authority of God Almighty. होने
चले परमेश्वर की इनकी आत्मा, परमेश्वर आपके अधिकार के द्वारा से चले। Oh, rise, rise, rise. और परमेश्वर उदय हो, They shall rise in the spiritual और realm ये आत्मिक रूप से उदय हो by the authority and power of God. परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य से। Every weaker spirit in Jesus' name, if you are person's life, if you are weaker, I speak to you in Jesus' name right now. हर एक दुर्बल आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से वहां से निकलने की आज्ञा देता हूँ। Oh Lord, I speak your authority to come upon their lives, oh God, right और now. परमेश्वर आपके अधिकार को और आपके सामर्थ्य को परमेश्वर इनके जीवन के ऊपर मैं Spiritual weakness. प्रार्थना करता हूँ। आत्मिक दुर्बलता Go in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से You जाओ। don't have any authority. तुम्हारे पास में कोई अधिकार I नहीं। speak the authority of God to come upon these people in the name of Jesus Christ. और मैं परमेश्वर की सामर्थ को इन लोगों के जीवन के ऊपर में आने के लिए यीशु मसीह के नाम In से कहता Jesus' हूं। name. यीशु के नाम से In Jesus' name. In Jesus' name. I speak that authority shall come with the presence of God upon your people in the name of Jesus ओ Christ. पिता प्रार्थना करता हूँ कि आपके लोगों के ऊपर में तेरा वो अधिकार एवं सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से उतर जाए। Receive that power and और उस authority. अधिकार और सामर्थ को आप Receive the power and authority of अधिकार God. और सामर्थ को आप ग्रहण कीजिए। To tremble the power of the enemy below your feet in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपके दुश्मन की सामर्थ को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए To trample the demons below your feet in the name of Jesus. Receive that power and authority. और उस शैतान की जो आपका दुश्मन है उसके अधिकार उसकी सामर्थ को आपको पैरों के नीचे रौंदने के लिए Oh, to just trample the sicknesses, the weaknesses, and the things of the world which are against the kingdom of God and your life. Tremble it in Jesus' name with the authority and power of God. हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता और संसार में उपस्थित सारी वो चीजें जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में आती है, जो शैतान की ओर से हैं, उनको रोकने के लिए परमेश्वर आपका अधिकार एवं सामर्थ को परमेश्वर हम मांगते हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में। let that authority shall be the portion of my people, O और God. परमेश्वर मेरे लोगों के जीवन का भाग होने पाए। परमेश्वर In आपका Jesus- अधिकार एवं सामर्थ यीशु मसीह के नाम In से Jesus' name, O God. यीशु मसीह के नाम से From today onwards, आज के बाद से every week who is watching me, और परमेश्वर हर एक दुर्बल व्यक्ति जो मुझे देखता, who is weaker in the spiritual realm, जो आत्मिक रूप से in दुर्बल है, Jesus' name, मसीह के नाम से। I speak that power to come upon him, and he is becoming a powerful person in the name of Jesus और आपकी Christ. सामर्थ को परमेश्वर इनके जीवन के ऊपर में उतराने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। Right now, अभी make him powerful people. परमेश्वर तू सामर्थी लोग बना, Oh, make them powerful इन people. लोगों को तू सामर्थी लोग Make बना। them powerful इन people. सभी को सामर्थी बना। No more weaker life. और कोई भी निर्बल जीवन नहीं हो, But Lord, from today onwards, लेकिन आज के बाद से there shall be a powerful life इनके पास में सामर्थी for जीवन the glory of God. परमेश्वर की महिमा I speak it in the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से मैं I कहता speak it in the name of Jesus हूं। यीशु Christ. मसीह के नाम से कहता I speak it in the name of Jesus हूं। Christ. यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। Right now, इसी समय every weaker प्रत्येक person निर्बल व्यक्ति in God's authority and power, परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य में I speak to be a powerful person in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें एक Right सामर्थी now, व्यक्ति बनने की right आज्ञा देता हूं। now, इसी समय you shall use your tongue for the life and not for the death in Jesus' name. आप अपने जीभ को जीवन के लिए इस्तेमाल करें, ना कि मृत्यु के लिए, यीशु के नाम में। You shall not use your tongue to become zero, but to bring the things into an existence in Jesus' और name. आप अपने जीभ को जो है वो शून्य के लिए नहीं, लेकिन चीजों को अस्तित्व में आने के लिए इस्तेमाल In करें। Jesus' name, O यीशु God. मसीह के नाम में। In Jesus' name, O यीशु God. मसीह के In Jesus' name, O यीशु मसीह के God. नाम से खुदा I bless everyone who is watching, O प्रत्येक व्यक्ति God, जो देखता है उसे who has आशीष दे। given their much of time to listen your voice, O God. परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने के लिए जिन्होंने अपना इतना समय दिया, Bless them abundantly, O God, बहुतायत से आशीषित कीजिए, because you respect and honor your word. क्योंकि आप अपने वचन का आदर करते हैं। They have also honored your word. परमेश्वर इन्होंने भी आपके वचन का They आदर have listened the whole और message. इन्होंने पूर्ण संदेश को सुना। Bless them abundantly in Jesus' name. बहुतायत से आशीषित कीजिए। Thank you, Lord, for doing it, O Father. धन्यवाद पिता करने, Giving you all glory and honor and praise. सारा आदर सम्मान आपको In Jesus' name, यीशु नाम से I bless everyone. प्रत्येक को आशीष। Thank you for doing so, धन्यवाद Lord. पिता, In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen and आमीन amen. और आमीन। Dear children of God, परमेश्वर की प्रिय बच्चों, from today onwards, आज के बाद से never feel that you are a weaker और section. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप एक दुर्बल व्यक्ति हैं, And never count yourselves that you are very few in number. और कभी अपने आप को बहुत कम संख्या में मत आंकिए। You are not in minority. आप अल्पसंख्यक नहीं हैं।
but you are in majority with the power and authority of God. लेकिन आप बहुमत में हैं परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य। If you have any prayer request, तो यदि आपके पास भी प्रार्थना की कोई निवेदन है, please write to me. कृपया कर मुझे लिखें। My WhatsApp number is, मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो है, for India it is +91, और भारत के लिए ये जो +91 है, that is code number, तो ये किसी भी देश का कोड संख्या होती है। and my mobile number is और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 6262 6262 74 74 1111. 1111 4 बार 1 है, 4 times 1 in the last. और अंत में 4 बार 1 है, 6262 74 1111. और 6262 74 1111। Please write to me your prayer requests, and if you need any help in the spiritual realm, I will be available to just help you in those areas. यदि आपके पास भी प्रार्थना की कोई निवेदन है तो कृपया कर आप मुझे लिखें, और आत्मिक रीति से यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप कृपया कर मुझे बता सकते हैं। Let's say the Lord's Prayer now, आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे, and with the word of benediction we will close. आशीष वचनों के साथ में हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। Amen. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, with the authority of God, with an intimacy to call Him Father and Abba, so that we shall be protected by all they will in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। Stay blessed. Amen. आशीष प्रिय।